मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी, आपको हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारकबाद। तिथि शुरू हो गई, चतुर्थी शुरू हो गई है, कल तक है। एंड you know what, each time Ganpati comes over to Mumbai, the whole Mumbai gets a totally new look. It's almost as if the city has been reborn. It's really beautiful. I mean, I really love it. It energizes the whole city. Yes, I was watching so many Ganpatis come in yesterday and even today, and it was really beautiful. It was great fun to watch, and the manner in which the entire city comes together just to welcome Bappa home is absolutely wonderful. I mean, this is something which you cannot find in any other city anywhere else in the world. This you can find only in Mumbai. सिर्फ मुंबई में, इसलिए कहते हैं मुंबई मेरी जान। And when Eknath Shinde, the CM, says it's time for celebrations. Yes. And it's really time for celebrations. The Absolutely. whole Maharashtra is out for celebrations. Your people flocking, going towards, and especially if you see the Konkan trains moving out from Mumbai to anywhere in Konkan, पूरे भरा हुआ, कचाकच, no space at all. अगर और भी सरकार ने ट्रेन्स डाइवर्ट किए हैं कोंकण की तरफ से, वो भी कम पड़ेगा। इतना उत्साह, इतना लोगों का जो flocking towards their villages in Konkan and moving around, a part of celebration is just to be seen. You can feel it around. In fact, you can feel celebrations all around you. Absolutely, really and truly wonderful. And as you know, we had some small part in telecasting Ganpati live all over the place, whether it was Lal Bagh Ka Raja, or it was Ganesh Gali Ganpati, or the Andheri Ka Raja, or the GSB Ganesh. So we've all been part of the growth of the Ganpati festivities right over here. You always taken special care to see that these things are always covered. Not only here, I can remember right from 2000, year 2000, 1999, when yes, you first we carried it live yes. the first time. Bilkul, sir. And that was when everybody thought it couldn't be done. Yes, but we were able to do it. It was absolutely wonderful. And Lal Bagh Ka Raja has really blessed us always. And so has Ganpati. आपका एक separate interest was there in seeing that these festivities are covered on television. क्योंकि सब मुंबई पहले इतना movement नहीं था. It was only after you did it in Mumbai and after with Sahara. उसके बाद then it started picking up and then everybody came and jumped. आपको अगर याद हो कि जब हम लोग वो जो when it was allowed, when all these live and then when all the cameras were allowed at that South Indian restaurant and hotel and opposite गिरगाम चौपाटी, अब तो खैर उनके लिए अलग से स्टेज बना के रखते हैं क्योंकि पटेल ब्रिज जो है उसको भी तोड़ दिया गया है। उस वक्त एक वक्त था कि हम लोग वहाँ होते थे और साथ में हमारे 15-20 चैनल हुआ करते थे अलग अलग। And by the time it was morning, or by the time it was 1:30 or 2 o'clock in the night, we were the only ones left. Everybody else would have gone. और आखिर में हम लोगों ने देखा कि अब हर एक कोई जाता है वहाँ पे। आज की तारीख में अगर आप देखें आनंद चतुर्दशी वाले दिन अगर आप जाएं गिरगाम चौपाटी के पास, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो वहाँ पर नहीं है। हर एक कोई गणपति के आगमन को और गणपति की विदाई को उसी तरह रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं, लाइव करते हैं। It's really beautiful. It is really and truly absolutely lovely. उस वक्त आपको याद होगा प्रदीप जी, because you were right there. Exactly. लोग हमारे ऊपर हंसा करते थे, ये क्या दिखा रहे हो गणपति, मतलब especially people in the north. Now दिल्ली में भी वैसी गणपति मना रहे हैं साहब, यूपी में भी मना रहे हैं, और तो और छोड़िए जैसा मुंबई में मनाया जाता है। And I am so happy about it. I am really and truly happy. मुझे मतलब बहुत बहुत खुशी हुई। You also wanted the government of Maharashtra to take this as 10 days as a way to exhibit to the whole world a tourism Maharashtra or tourism that जी बिल्कुल। it could have been a great feat because करोड़ ये 10 दिन में आप मुंबई के महाराष्ट्र के हर सड़क पर लोग घूमते नजर आएंगे, एक गणेश मंडल से दूसरा गणेश मंडल। इट्स फेस्टिविटी आउट देयर, इट्स फेस्टिविटी एंड यू हैड अ प्लान कि इस चीज को टूरिज्म में कैसे बदल दे। जी बिल्कुल, वो मुंबई फेस्टिवल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था। जयंत पाटिल साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनको पूरा बताया कि भाई देखिए आज ही के दिन, सिर्फ एक दिन यानी अनंत चतुर्दशी वाले दिन तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ गिरगाम चौपाटी पर हैं। मतलब
ऐसा दृश्य दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। मेरा ये कहना है कि रियो फेस्टिवल इज नोन फॉर समथिंग एल्स, इट्स ऑल लॉट्स ऑफ सेक्स एंड ग्लैमर एंड स्टफ लाइक दैट, but the Ganpati festival is known for devotion, it's known for celebration, it's known for so many other things, it's known for human values, it's known for uniting all of humanity, spirituality, wisdom, yes. intellect. Now the point is, if only the government of Maharashtra can still wake up to the fact that hey, you've got a gold mine here, you can get the entire world here to witness what is going on. And I am so grateful to the Prime Minister, Mr. Modi, whose birthday was yesterday, that this Swachh Bharat Abhiyan, one of the reasons why foreign tourists used to hesitate coming to India was there were no clean toilets. That problem seems to have been solved somewhat, not completely, but somewhat. Today, you have the infrastructure and you have everything else. आज आप दही हांडी से शुरू करके क्रिसमस और न्यू ईयर तक अगर आप जाएंगे तो मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग त्योहार हैं और सब लोगों के, क्योंकि देखिए अभी 28 तारीख को मतलब ईद भी है और उसके बाद जाकर के आपका क्रिसमस आएगा, उसके बाद जाकर के न्यू ईयर आएगा, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल। और बीच में नवरात्रि, विजयदशमी, उसके बाद दिवाली, कंटिन्यूस सेलिब्रेशंस, ब्यूटीफुल कंटिन्यूस फेस्टिवल्स, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है। एंड मुंबई कैन बी द एपिसेंटर for this new tourism initiative. Spiritual tourism. Yes. Pradeep ji, I'm reasonably certain the people of Maharashtra and the government of Maharashtra would gain tremendously from it. You'll be able to get at least 10 to 15 crore tourists just for this season, right over here in Mumbai. I don't know why they're not doing it. Everybody can see what's happening, but I still don't know why they are not doing somebody it. to start it, and then once it starts, everybody jumps in the bandwagon. I hope they do it. Mine. Whoever does it doesn't make a difference. I hope they do it. Our city deserves this. This will be really and truly lovely. आप सब लोगों को एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राइट, एंड द मोमेंट विद अस, लेट्स स्टार्ट द शो। ये तो हो गई गणेश जी की बात। मैं उम्मीद करता हूँ गणेश जी सबको अकल दें। आफ्टर ऑल ही इज द गॉड ऑफ विजडम टू, एंड हर एक को अकल दें, हर एक को ये बताएं कि भाई देखिए बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें, अकल से काम लें, बेवकूफ़ियाँ ना करें। एट द मोमेंट विद अस one of the wisest men we know, Mr. Lakshman Hake of the Uddhav Thackeray Sena. Lakshman Hake साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सर, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, क्या बात है साहब। तो लक्ष्मण आके साहब, उद्धव ठाकरे जी ने एक चेतावनी दी सभी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं सबको। उदयनिधि स्टालिन साहब ने जब वो सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी बोला कि भाई उसकी तुलना कर दी HIV के साथ और क्या है वो डेंगू के साथ और कोविड के साथ, मलेरिया इसके साथ, तो उद्धव ठाकरे जी अकेले थे जिन्होंने अकल वाली बात करी। उनका भाई देखो सब लोग सतर्क हो जाइए, इस किस्म की बातें ना करें, हर एक को एकत्रित होके एकता से यूनाइटेड हमें लड़ना है, क्योंकि हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद कोई चुनाव लड़ने के लिए होगा ही नहीं। ये उद्धव ठाकरे जी ने रिमाइंड किया सबको। और सुनने में तो ये भी आया, जानकारी जो मिली है कि सोनिया जी से अलग से बात करी कि ये क्या है। आप स्टालिन साहब से बात करें कि अपने सुपुत्र को समझाएं। इसके बारे में जरा कुछ बोलेंगे लक्ष्मण आगे साहब? बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। 25 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन इन्होंने जो एक वाक्य बोला था कि ये सनातन धर्म। सर 25 सितंबर नहीं, 25 सितंबर को आएगा सॉरी 25 अगस्त 25 अगस्त को बोला था। उदयनिधि मारन का स्टेटमेंट। उदयनिधि स्टालिन सर, उदयनिधि मेरा मारन तो दूसरे वाले हैं। नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है
डीएमके, एआईडीएमके, बहुत मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी उनके नाम आप भी अकेले ऐसे नहीं है सर, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हाँ हाँ। तो उदयनिधि स्टैलिन ने जो बोला था जी वो तो थोड़ा नॉर्थ इंडिया की बात, महाराष्ट्र से ऊपर के जो स्टेट है, राज्य है, वहीं पे थोड़ा धार्मिक एंगल और ये धार्मिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र के नीचे जो जितने जितने स्टेट है वहीं पे थोड़ा ओबीसी, रामास्वामी पेरियार, ये सब, ये जो ओबीसी मूवमेंट एक अच्छी तरह से मूवमेंट है वहीं पे। और बहुत दिनों से वहाँ पे रामास्वामी पेरियार के विचारों को फॉलो करने वाली ये डीएमके, एआईडीएमके, ये पार्टीज रही है। और वो दयानिधि स्टालिन ने ये बोला था कि अगर समानता पाना है और सामाजिक न्याय दिलवाना है तो सनातन धर्म के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट किया था। मैं तो ये बात करूंगा कि हमारे उद्धव साहब ने जो बोला है, चुनाव सामने आ गए हैं और एक इंडिया का गठबंधन हो रहा है और ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन पे और इसका जो एजेंडा रहेगा, इसकी जो पॉलिसी रहेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, इसके ऊपर कोई सेंटेंस प्रभाव करे ये ना करे, ये सम्माननीय उद्धव साहब ने बोला है। और ये जो दयानिधि स्टालिन ने जो बोला है, इसके ऊपर उनके ऊपर थोड़ा सा अन्याय किया है मीडिया ने, ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसा मानने वाला मैं एक आदमी हूँ। लेकिन पेरियार साहब का कल जन्मदिन भी था। हाँ, ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार, जिसको पेरियार बोलते हैं, उनका कल जन्मदिन भी था नरेंद्र मोदी जी के साथ। ही शेयर्स हिज बर्थडे विद मिस्टर मोदी। यस जी, तो मेरा ये कहना है कि पूरे देश ने पेरियार साहब को, उनकी बहुत तारीफ करी, कांग्रेस ने भी करी, समाजवादी पार्टी ने भी करी, जितने भी लोगों ने उदयनिधि स्टालिन पर अटैक किया, इंक्लूडिंग द बीजेपी, बाय द वे, बीजेपी हैज आल्सो सेलिब्रेटेड पेरियार्स बर्थडे। सो ऑन व्हाट बेसिस कैन दे डू दैट? क्योंकि पेरियार साहब ने जो सनातन धर्म के बारे में कहा है वो तो कुछ 10 गुना ज्यादा गंभीर है जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है। बराबर। वेरी वेरी दिस बट डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये जो बाकी जितने भी घटक दल हैं अपने इंडिया अलायंस के, वो लोग अकल से काम लेंगे? मतलब इस मैटर में थोड़ा लेंगे, जरूर लेंगे। जैसा समय सामने आएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इकट्ठा हो जाएंगे और एक अच्छा साजिश बनेगी, अच्छा गठबंधन बनेगा और इंडिया का जो पब्लिक है, इंडिया को, ये भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा ऑप्शन इस इंडिया की गठबंधन से मिलेगा। लक्ष्मण जी, मगर एक चीज है कि जो जितने लोगों ने जूनियर स्टालिन का समर्थन किया, जिसमें कार्ति चिदम्बरम भी था, अलग अलग खरगे साहब के लड़के भी थे, जूनियर खरगे, सब लोग ने कहा एक गलत चीज अगर हुआ था उस पर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है। अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था, उसको चर्चा करना चाहिए, मगर चर्चा करते हुए आप पूरे समाज को, सनातन धर्म को ही खत्म करने वाली बात है, वो गलत है। मगर समर्थन, बट जो गलतियां हुई है उस पर चर्चा करने में कोई गलत बात नहीं है कि वापस ये चीज होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ वर्ण सिस्टम पे है, कास्ट सिस्टम पे है, तो आप कैसे इस चीज को देखते हो? बिकॉज लोग, पीपल हैव सफर्ड, सफरिंग्स हुआ है, बट पूरे सनातन धर्म को ठीक गलत करना वो भी सही नहीं है। नहीं, ये दयानिधि स्टालिन ने जो बोला है, अगर समानता प्रस्थापित करनी है तो सनातन जैसे धर्म की रणनीति या उनका कोई जो एक एटीट्यूड है, प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति खत्म करनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही थी। मगर आधे सेंटेंस में पूरे इंडिया में बवाल मच गया। पूरे मीडिया ने उनका पूरा स्पीच नहीं दिखाया और उनका पूरा विचार नहीं बताया। सिर्फ सनातन प्रवृत्ति को जो उन्होंने उपमा दी है उसके ऊपर ही डिबेट हो गया। मैं तो ये बात करूंगा कि अगर समानता चाहते हैं इस देश में, तो अगर इस देश में समानता चाहते हैं, मैं एक बात आपको कहूंगा, ये सनातन धर्म है, ये सनातनियों ने, अगर मेरे महाराष्ट्र की बात अगर सामने रखते हैं तो हमारे निवृत्तिनाथ रहने दो, ज्ञानदेव रहने दो, सोपानदेव रहने दो, मुक्ताई रहने दो,
तुकाराम महाराज रहने दो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहने दो, आगे जाके इन सब ये जो समाज में एक बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर है, इनके साथ सनातनी धर्मियों ने बहुत सारा अन्याय किया है। और ये अन्याय सामने रखते हुए मैं तो हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा, मैं तो हिंदुत्व का कंसेप्ट अलग मानता हूं और सनातनियों का कंसेप्ट अलग मानता हूं। और ये सनातनियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके, तुकाराम महाराज को लेके, ज्ञानदेव को लेके अभी तक नरेंद्र दाभोलकर साहब के साथ जैसा बर्ताव किया है, ये सनातनी धर्म हम मानते हैं। और इस ऐसे अगर सनातन धर्मी इनका एक प्रवृत्ति रहती है। लक्ष्मण हाके जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लक्ष्मण हाके जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं लक्ष्मण हाके जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज अभिषेक के वक्त आपको याद होगा किस प्रकार इन्हीं सनातनियों ने, मैं भी सनातनी हूं, प्रदीप जी भी सनातनी हैं, आप भी हैं, कुछ सनातन धर्म के तत्वों ने राज अभिषेक को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। यस। तो इसमें और हमारे जितने भी रिफॉर्मर रहे हैं, ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, बाकी सब लोगों को देख लीजिए, जब ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात करी और उनको आगे लाने की बात करी, उनके ऊपर क्या क्या कटाक्ष करे गए, मुझे यहाँ पे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तो और छोड़िए, छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात, हमारे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, आर्य समाज के फाउंडर, उन्होंने क्या क्या लिखा है सनातन के बारे में? नहीं, ये सरस्वती जी ने सनातन धर्म के बारे में जो हमारे दयानिधि स्टालिन साहब ने कहा है वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि सारे मंदिरों को तोड़ देना चाहिए और मूर्ति पूजा जो है इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। मतलब और तो और उन्होंने ये भी, मतलब जैनियों के बारे में क्या लिखा है, सिखों के बारे में क्या लिखा है। मेरा ये कहना है कि भारत में इस प्रकार की विचारधाराएं हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की लहर को संभालते हुए, बढ़ाते हुए, उसको फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि आज की तारीख में सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो इसका मतलब हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। लक्ष्मण हाके साहब, ये नैरेट गलत है और ये भारतीय जनता पार्टी ये सनातनियों का बाजू ले रही है और दयानिधि स्टालिन के ऊपर अटैक कर रही है। मगर इस भारतीय जनता पार्टी ने ही कभी डीएमके के साथ अलायंस करके सत्ता में बैठी है, कभी एआईडीएमके का साथ लेके उन्होंने पार्टी में सत्ता में बैठी है। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमारे छगन भुजबल साहब ने माँ सरस्वती को भी माँ विद्या की देवता मानने से इनकार किया था। वो छगन भुजबल अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पाने का जो तरीका है ये डबल मीनिंग का है। मतलब उनके साथ जो जाते हैं वो उनके हो जाते हैं। सत्ता पाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है। मैं बहुत दिनों से आपके साथ जब मैं डिस्कशन करता हूं, मैं बहुत बार बोलता हूं, ये धर्म है, ये मेरा देश है। अगर देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हमारे संविधानिक तरतूद, मतलब संविधान जो बोलता है सर्वधर्म समभाव, सब नागरिकों को सम्मान मिलना, सब नागरिकों के उनके धर्म का हम सम्मान करें, एक दूसरे को भाईचारा बना के रखें, ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व कहता है, ये हमारा देश का नागरिकत्व का जितना भी अधिकार हो वो कहता है। मगर भारतीय जनता पार्टी गलत क्या करती है, जो प्राइवेट लेवल पे, जो पर्सनल लेवल पे किसी का धर्म रहता है, किसी का आचार विचार रहता है, किसी का श्रद्धा, किसी की श्रद्धा रहती है, ये राष्ट्रीयत्व के लेवल पे लेके आते हैं और एक दूसरे को चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद करना, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे के बीच में बवाल मचाना, ये भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर आपसे ही जानना चाहता हूँ सर, आपने दंगे फसाद की बात करी, ये क्या हो क्या रहा है? ये अभी सतारा के अंदर ये क्या हो गया? मतलब अजीबोगरीब मसला है। कभी देखिए शोलापुर में, कभी सतारा में, कभी इधर मुंबई शहर में मलाड में, मतलब ये क्या हो रहा है साहब? ये जो पुसे सावड़ी में सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो बात हुई है, एक फेक आईडी था और वो फेक आईडी भी एक ये भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले संस्थाओं में से एक आदमी था। उन्होंने एक फेक न्यूज बना के फेक पोस्ट बनाई
और डाल दी, और उसके बाद एक एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, एक मॉब एक धार्मिक प्रार्थना स्थल पे जाता है और उधर दंगा फसाद करता है, उनमें एक नवयुवक की जान गई है जी। ये सब जब सामने आ गया तो हमारे महाराष्ट्र का गृह विभाग, हमारे महाराष्ट्र के और सातारा के जो जितने भी लीडर है, जितने भी धार्मिक लीडर है, जितने भी ये सब लोग है, ये सब लोग मतलब ये बहुत घिनौना हरकत थी, घिनौनी ऐसे मैं बोलूंगा। लेकिन ये अभी हो क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या लोगों को क्या इससे पॉलिटिकल एडवांटेज क्या मिलेगा सर किसी को? ये चुनाव नजदीक आता है तो ये बातें होती जाएगी, होती रहेगी। हमारे उद्धव साहब ने भी बहुत बार बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी रामनवमी के पहले इस देश में जो मेन सिटीज है वहीं पे रामनवमी के पहले बहुत जगह पे हिंदू और मुस्लिम में अचानक दंगा फसाद हो गया था, पूरा प्लानिंग करके। मेरे महाराष्ट्र की बात अगर कह दूं तो कोल्हापुर में हुआ, संभाजीनगर में हुआ, बहुत सारे 4-5 बड़े सिटीज में जहां पे संवेदनशील सिस्टम है, संवेदनशील मॉब रहता है, संवेदनशील एरिया रहता है, वहीं पे ही दंगल हो गई। इसका मतलब यह है कि अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, इधर बेरोजगारों के प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है। जितने भी वादे किए थे सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे अगर सामने आते हैं तो ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण करना ये भारतीय जनता पार्टी की पहले से पॉलिसी है। प्रदीप जी। लक्ष्मण हाके साहब, जो जारंगे पाटिल जी जल्ला से जो आंदोलन हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे खुद जाते हैं और जारंगे पाटिल मान लेते हैं, फ्रेश जूस पूछ लेते हैं, आंदोलन को खत्म कर लेते हैं। अब नाना पटोले जी ने आरोप लगाया, नाना पटोले जी कांग्रेस के आपके एमवीए घटक और इंडिया के अलायंस, उन्होंने कहा कि इनको जारंगे पाटिल जी को बिठाया था एकनाथ शिंदे जी ने। ये सीधा नाना पटोले जी ने बोला है, आरोप लगाया है, और आगे जाके कहता है कि लाठीचार्ज कराने वाला देवेंद्र फडणवीस जी है। तो क्या ये क्या चल रहा है? मीन्स जो आप बोल रहे हो वो एक चीज तो सोशल इनजस्टिस है ही, मराठा रिजर्वेशन गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो आप भी बोलते हैं, हर व्यक्ति बोलते हैं कि जो गरीब से गरीब लोगों को मिलना चाहिए, मगर ये कोई तरीका है? बिकॉज लोग देख रहे हैं, लोग समझ भी नहीं पा रहे। नाना पटोले जी का लेटेस्ट आरोप है कि एकनाथ शिंदे जी ने खुद उनको बिठा दिया है और लाठीचार्ज फडणवीस ने करा दिया। तो आप लक्ष्मण हाके साहब जमीन से जुड़े हो, सब देख रहे हो, आप गली गली घूमे हैं और स्पेशली जो पीड़ित लोगों का बहुत सारे मैटर आपके पास हमेशा आता रहता। तो ये क्या चल रहा था जल्ला में, क्या तमाशा में, क्या था वो असलियत में? नहीं, ये आरोप तो होते रहेंगे, सत्ताधारियों के ऊपर विरोधक आरोप करेंगे, विरोधकों के ऊपर सत्ताधारी आरोप करेंगे। मगर मेरी राय, अगर मैं इतना बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके पास मैं बहुत बार जाता हूँ, बहुत बार उनकी समस्या है। रात के 12-1 बजे भी मुझे कॉल आती है कि हमारे जो पाल बस्ती है, वाड़ी है, तांडा है, इसके ऊपर गांव वालों ने हमला बोला है और हमें बाहर निकाल के हमारे घर जला दिए हैं। और वीडियो कॉल आते हैं मुझे 1-1 बजे, 2-2 बजे। मैं वो वीडियो कॉल आने के बाद मैं 1-2 बजे मैं पुलिस को फोन करता हूँ, पीआई को फोन करता हूँ, उधर के पुलिस अधिकारी को फोन करता हूँ। ऐसी सारी बातें होते हुए जो ओबीसी के अंदर विजयंतीज में जो सामाजिक न्याय के प्रतीक्षा में महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं। मगर आज मराठा कम्युनिटी से अगर एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों ने अगर एक आंदोलन किया, अनशन पे बैठे और महाराष्ट्र में जो एक माहौल बना दिया, ये अगर माहौल, मुझे लगता है ये लोकशाही में किसी ने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अनशन पे बैठना, उपोषण करना, ये लोकशाही में एक वेपन्स हो सकता है। मगर लॉ क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, आरक्षण किसको दिलाया जा सकता है, आरक्षण का मीनिंग क्या है, और आरक्षण देते वक्त किसी का सोशल बैकवर्डनेस चेक करना, किसी के सोशल बैकवर्डनेस के बारे में पैरामीटर लगाना और किसी के साथ कंपेयर करना, अगर ये सब बातें सामने रखते हैं तो अगर मराठा कम्युनिटी अगर आरक्षण मांगती है, रिजर्वेशन मांगती है, तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन का मीनिंग ही नहीं बचेगा।
तो ये कायदा कानून और संविधान ये जी। बातें करता है। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब यहाँ पर ये जो आपने बात कही है, पते की बात, ये वेरी फ्रैंकली जो रिजर्वेशन है क्यों दिया गया है, उसकी वजह क्या है कि सोशल बैकवर्डनेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली। यस। तो हाउ विल द मराठा कम्युनिटी जिसमें 96 कास्ट हैं, हाउ विल दे शो सोशल बैकवर्डनेस, मतलब सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए अपने आप को किस प्रकार अपनी परिभाषा वो देंगे? कुछ ये मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि मेरा दिमाग कम हो, मेरे पास नॉलेज नहीं हो, भले वो 50% के दायरे में आते हो नहीं आते हो, ईडब्ल्यूएस हो ना हो वगैरह वगैरह, वो अलग बात है, बट सोशल बैकवर्डनेस हैज टू बी प्रूवन। सर बताएं। से ये सोशल बैकवर्डनेस हमारे महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी, स्टेट बैकवर्ड कमीशन, आज तक के 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी का, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ये फैक्ट समझ ध्यान में रखो, ये मराठा कम्युनिटी को 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने सोशल बैकवर्डनेस नकारा है, एक बात। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार, 2 बार तो जाट और राजपूत और गुर्जर ये जो आंदोलन हुआ था नॉर्थ में, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर एक स्टेट के डोमिनेटिंग कास्ट के बारे में एक जजमेंट दिया था। वो भी छोड़ो, अभी जो मराठा कम्युनिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब केस चली, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था कि 1600 पानों का एक जजमेंट दिया है। अगर वो पढ़ेंगे, मैं तो ये बोलूंगा कि ये महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी सोशल बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोशल बैकवर्डनेस कभी है ही नहीं। सोशल बैकवर्डनेस के जो पैरामीटर्स है, जो रूल्स है, किसी को सोशल बैकवर्डनेस कहना है, मैं एक आपके सामने बात रखता हूं, मेरी महाराष्ट्र की बात रखता हूं। ओबीसी का जो 27% जो रिजर्वेशन है, उनमें से 19% ओबीसी को है और 11% विजेएनटी को है। और ये 11% में भी विजेएनटी अ, विजेएनटी ब, विजेएनटी क, विजेएनटी ड, और ये जो 4 प्रवर्ग हैं, 4 प्रवर्ग का भी सोशल एटीट्यूड, सोशल जो लक्षण है उनका, वो भी अलग अलग है। विजेएनटी अ प्रवर्ग, उनका कोई स्पेशल आइडेंटिटी है। विजेएनटी बी का उनका कोई स्पेशल लक्षण है। विजेएनटी सी उनका अलग है, विजेएनटी डी उनका अलग है। और ये सब सोशल बैकवर्ड है। ये संविधान ने माना है, ये मंडल आयोग ने माना है, और मंडल आयोग के भी पहले ओबीसी का रिजर्वेशन 1964 से महाराष्ट्र में लागू है। मैं तो आपके सामने ये क्यों बोल रहा हूं, हमारे देश में हमको स्वातंत्र मिलने के बाद, फ्रीडम मिलने के बाद, हमारे लोगों ने ये जो हमारा मराठा कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटियों को उनके खेती का पानी रहने दो, उनका जो फॉरवर्डनेस होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, ये सब बातें में ये हमारे पॉलिटिशियंस फेल्यूर रहे हैं। तो इन सब नवयुवक को, नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि आरक्षण की वजह से हम पीछे रह गए हैं, मगर ये बात नहीं है। कोई मराठा कम्युनिटी का जवान बोलता है कि हमें 90% मिले हैं और ओबीसी के लोगों को 70% मिले हैं, 80% मिले हैं, और वो आगे जा रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। तो ये कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक दूसरे को एक कंपेयर कर रहे हैं, और ये सोशल बैकवर्डनेस प्रूव करने के बिना इस महाराष्ट्र में, इस देश में किसी को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब देखिए, जो परिभाषा आप बता रहे हैं, जो प्रदीप जी हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, अब हम तीनों को तो समझ में आ रहा है कि देखिए साहब, सोशल बैकवर्डनेस अलग है, आज की तारीख में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो अलग है। आज की तारीख में जिस प्रकार मार्क्स वगैरह 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 जो तय किए जाते हैं, और ओबीसी जो हैं, एससी एसटी जो हैं, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो 2-2.5 हज़ार साल जो सामाजिक द्वेष का सामना करना पड़ा है इन सब जातियों को, उसके एवज में है। जैसे हाल ही में मोहन भागवत जी ने भी वही बात दोहराई है, बोली थी नाउ व्हाट ऑल आई एम सेइंग इज, लेकिन आज के बच्चे को आप वो समझाओगे कैसे? वो बोलता है कि यार मेरे बाप के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, वो सामने वाला जो है वो एससी एसटी है या वो ओबीसी है, वो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर का बेटा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में जाता है, सब कुछ करता है,
और मेरे घर में साइकिल भी नहीं है और मेरे 90-93% मार्क्स आ रहे हैं, उसके 68% आ रहे हैं और उसको मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हर जगह पे एडमिशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? ये बताइए सर, इसका सोल्यूशन क्या है? उनका काउंसलिंग होना चाहिए और हमारे शिक्षा में रिजर्वेशन के बारे में कोई पाठ होना चाहिए और उनके ऊपर सिविलाइजेशन का जब हम संस्कार करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस कक्षा में हमने कोई पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई काउंसलिंग का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। अगर वर्ल्ड में पूरे 119 कंट्रीज में आरक्षण है, आज भी है, और मैं इसके आगे जाके मैं आपको ये बोल देता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कंपेयर करेंगे, उनका अज्ञान है इसीलिए वो कंपेयर कर रहे हैं, मगर उन बच्चों को अगर ये रिजर्वेशन मांगते हैं, इन लोगों के सामने मैं मेरा लॉजिक, छोटा सोल्यूशन है लक्ष्मण आगे साहब, इसका एक छोटा सोल्यूशन है ना, क्यों नहीं करते हो? बोलिए। मुझे लगता है आप उद्धव ठाकरे जी को, जब आपकी सरकार आएगी अगले साल, आपको ये करना चाहिए, अरे सीट्स बढ़ा दो ना, कॉलेजेस बढ़ा दो, सीधी बात है। महाराष्ट्र की सरकार को, सर मेरी पूरी बात सुन ले, सर मेरी पूरी बात सुन ले छोटी सर 1955 के बाद पूरे मुंबई शहर में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, नहीं। पूरे महाराष्ट्र में ना जाने कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और कितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ना जाने क्या क्या बन गए, कितने पॉलिटिशियंस के। सुनो, ये इसके मैं आपको बोल रहा हूं, और बाय द वे 83% ऑफ देम आर मराठा ओन्ड 83% ये सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। वहां पर ये लोग मराठाओं को अलग से आरक्षण क्यों नहीं देते? पूछ रहा हूं ना सर आपसे। यस सर, ये मैं बहुत बार आपको बोला हूं कि 1600 पानों का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इनमें ये बातें सब इंक्लूड है। महाराष्ट्र में 210 शुगर मिल है जी, 210 में से 5, 6 या 8, 10, ज्यादा से ज्यादा 15 शुगर मिल छोड़ के बाकी सब मराठा कम्युनिटी के लीडरों जी। एजुकेशन सिस्टम में 90% जो एजुकेशन संस्थाएं हैं ये मराठा कम्युनिटीज की है। चिलिंग प्लांट रहने दो, उपजाऊ जमीन, मतलब वो फर्टाइल लैंड है, वो नदी के बाजू में, चाहे अच्छी जमीन, फर्टाइल लैंड बोलते हैं उसे, ये फर्टाइल लैंड भी सबसे ज्यादा एक्विजिशन ये मराठा कम्युनिटी के पास है। सबसे ज्यादा एमपीज, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र के 12 मुख्यमंत्री मराठा कम्युनिटी के हैं। लॉ बनाने वाले वो है, लॉ इंप्लीमेंट करने वाले वो है, और समाज के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंस डालने वाले मराठा कम्युनिटी है। मैं आगे जाके आपको ये बात रखूंगा एक राज्य मागास वर्ग आयोग का सदस्य होते हुए कि मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में डोमिनेटिंग कास्ट है, उनके हाथ में सिस्टम है, और ये सिस्टम हजारों सालों से इस महाराष्ट्र में सस्टेन होती आ रही है। और आप अब बोल रहे हैं कि हम पिछड़े हो गए, ऐसी क्या बात बनी कि जो मराठा कम्युनिटी, देश को आबादी मिलने के बाद मराठा कम्युनिटी पिछड़े हो गई? वो तो चौगुला है, वो तो गावड़ा है, वो तो पाटिल है, वो तो जागीरदार है, वो तो इनामदार है, गांव के मुखिया सब मराठा है, और मराठा होते हुए वो सोशल बैकवर्ड कैसे बन जाते हैं? अगर सुनो मेरा लॉजिक इसके ऊपर यह है, अगर मराठा कम्युनिटी का एकादी फैमिली इकोनॉमिकल दृष्टया, मतलब आर्थिक दृष्टया मागास हो जाती है, तो मराठा कम्युनिटी कभी हमारे ओबीसीओं का, हमारे भटके विमुक्त जाति जमातियों का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो धर्म का पूजा अर्चा है, ये नहीं लेते ना। गरीब होने के बाद भी वो पाटिल का पाटिल ही रहता है, उसका स्टेटस जो है वो स्टेटस रहता है। और ये जो भटके विमुक्त जाति जमातियां हैं, ओबीसीज है, उनका बिजनेस हजारों सालों से, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, अगर मराठा गरीब हो गया तो वो नाभिक का बिजनेस नहीं अपनाता। अगर मराठा गरीब हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है, आर्थिक दृष्टया वो गरीब हो गया, तो एक कुड़मुड़े जोशी का कुड़मुड़ा हाथ में बैल लेके, माकड़ लेके वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। उनका जो सोशल स्टेटस है वो अपर है, ऊपर है, और ऊपर रहता है, रहेगा। इसीलिए रिजर्वेशन ये
आर्थिक कारण से रिजर्वेशन नहीं है। तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी लक्ष्मण आगे जी जैसे बता रहे हैं, जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, ये तो कोई इंटरकास्ट वॉरफेयर शुरू हो जाएगा इसमें, तो मतलब पूरा का पूरा तो चालू भी हो गया। ओबीसी आंदोलन पूरे नागपुर से शुरू हो गया आके साथ, वो आके मंत्रालय में आके पूरे मंत्रालय का घेराव करने वाले हैं। और जो मैंने देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं, जो ओबीसी का उग्र आंदोलन उग्र है, लोग जुड़ रहे हैं और लाखों में लोग जुड़ रहे हैं ओबीसी के। तो ये जाके कहां तक खत्म होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सुनो, हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके राजेंद्र प्रसाद साहब से जितने भी लोग थे हमारे मसूदा समिति के, घटना समिति के, उन सब लोगों ने ये बात ध्यान में रखते हुए उस टाइम ही 1948 का जो कास्ट न्याय सेंसस नहीं होना है, ये बात अभी जो आपने जो डर पैदा किया, आपने जो डर की बात बोली, ये सामने रखते हुए जात न्याय जनगणना अभी ये आबादी मिले हुए इस भारत में नहीं होगी, ये डर सामने रखते हुए कही थी। और हमारा 1948 का जो सेंसस एक्ट है, उसका प्रावधान, उसका कारण भी यही बता दिया गया है। अगर हर किसी कम्युनिटी को हमारी जात समझ में आएगी, उनकी पॉपुलेशन समझ में आएगी, तो हर एक आदमी बोलेगा कि चलो हमें ये दो, हमारी इतनी पॉपुलेशन है। मगर इस देश को जो संविधान मिलाया, इस संविधान के रूप से इधर जो सुग्रास भोजन बना दिया गया है, ये भोजन हर एक को मिलना चाहिए, इसीलिए रिजर्वेशन इस देश में लाया गया। मगर हमारे जो शासनकर्ता लोग हैं, हमारे जो सब सत्ता में बैठे हुए आज तक सरकारें हैं, उन लोगों ने संवेदनशीलता से इधर के जो रिजर्वेशन के दायरे में, सामाजिक न्याय के दायरे में, उनके बारे में आज भी अच्छा पॉलिसी, अगर पॉलिसी भी बहुत सारी है, मगर उनका पर्कुलेशन, उनको बजटरी तरतूद, ये बातें अगर सामने रखते हैं, तो आज भी जो रिजर्वेशन के दायरे में जितनी कास्ट है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों को और 100-200 साल तक ये रिजर्वेशन होना चाहिए। तभी तो लास्ट का हजारों सालों का जो सामाजिक अन्याय हो चुका है, उसके ऊपर हम थोड़ी बराबरी के साथ आ जाएंगे। But for that, caste-based census is a must. Caste-based empirical data is absolutely required. उसके बिना नहीं होगा सर, जब तक मगर रिक्वायर्ड है, मगर अभी जो बात कही थी ना, ये बात सामने आ गई, मतलब उस टाइम हमारे उसका वो वक्त अलग था सर, अभी तो बहुत साल हो गए, 75 साल हो गए। आज तो होनी चाहिए, कास्ट न्याय सेंसस होना चाहिए। अगर otherwise these agitations will not stop. अगर मालूम पड़ गया फॉर एग्जांपल, जैसे मराठास में ये कास्ट हैं और इनका ये सोशल स्टेटस है, ये इनका इकोनॉमिक स्टेटस है, यहाँ पर इनका ये है, उसी हिसाब से एकदम मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू, हाउ विल यू पॉइंट द वे फॉरवर्ड, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डेटा। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब वो तो फिर पॉलिटिकल मूव हो गई ना, मतलब वो तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो गया। यस, आज तक ये जो ओबीसीज है, एससीज है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर सिर्फ मत देने वाले लोगों को रॉ मटेरियल ही उसको बना दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, चलते सर, आपको क्या लगता है कि क्या मराठा आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर सोशल बैकवर्डनेस की तहत जो संविधान को चाहिए, जो कायदा कानून में बैठे, ऐसा आरक्षण मुझे नहीं लगता, उसके ऊपर अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी, उसके ऊपर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट ओवर 50% बट आल्सो ओवर द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड। मगर नरेंद्र मोदी साहब ने सुनो मगर नरेंद्र मोदी साहब ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आरक्षण अमेंडमेंट करके 10% आरक्षण दे दिया है। मैं मराठा कम्युनिटीज के ये जो आंदोलन करते लोग हैं, इन सब लोगों को विनती करूंगा कि अगर आप आर्थिक दृष्टया पिछड़ गए हैं रिजर्वेशन की वजह से, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने अमेंडमेंट करके कानून बना के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया है, मगर वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। Because they are not economically backward, because they are not economically weaker section. और हाके साहब, अगर स्पेशल सेशन में मोदी साहब कुछ अमेंडमेंट लेके आता तो सही, नहीं तो फिर
ये तो सिर्फ आंदोलन और धरना ही रहेगा 2024 तक। जी दुरुस्त बात। ये महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का आंदोलन हो गया। उनकी राइट, लोकशाही में हर कोई आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगे सामने रखने के लिए उग्र आंदोलन कर सकता है। मगर ये जो ओबीसी लोग हैं ये बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग कर रहे हैं और वो अभी जुट रहे हैं, सामने आएंगे। इसका आ गए सामने सर आ गए सामने। हाँ, वो तो एजुकेशन हो गई है। जाति और जाति के साथ झगड़ा जो है वो लगा दिया है इन्होंने, क्या करेंगे। मुझे तो आगे मुझे तो बड़ा स्ट्रेस हो रहा है इसको देख करके कि आगे चलने वाला है 2024 तक सर। तनाव बढ़ने वाला है बहुत बुरी तरह, विच इज गोइंग टू एनीवे। एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू लक्ष्मण हागे साहब। ऑलवेज अ प्लेजर। Mr. Lakshman Hage of the Uddhav Thackeray Sena talking to us, and at the moment with us, who's been waiting at least for the last 7 minutes, Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार। राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। सर गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया। सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की। गणपति खुशहाली लाए, डेमोक्रेसी लाए। आपको आपके लिए बहुत खुशियां लाए। जी को डॉन ऑफ हार्ट्स बोलता हूं, डॉन ऑफ हार्ट। जी ही इज अ डॉन ऑफ हार्ट। ही इज द रियल डॉन। एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट। तो सर विमेन्स रिजर्वेशन, भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर के आई है विमेन्स रिजर्वेशन को लेकर के, और राहुल गांधी जी ने बताया, मेरी समझ में तो सच ही बोला है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई राजीव गांधी जी ये पहले लेकर के आए थे और जान करके हमारे कुछ मित्रों ने उसको उस वक्त लागू नहीं होने दिया था। पंचायती राज का बिल था और ये महिला आरक्षण का बिल था। आज की तारीख में वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं जिन्होंने उस वक्त उसका विरोध किया था। भरत सोनी साहब बताएं। राजीव जी देखिए, 1989 में पहली बार राजीव जी ने सोचा कि वुमेन्स रिजर्वेशन देना चाहिए और वो उन्होंने पास कराया जी। हाँ, लेकिन सर एक हाउस में उसको पास नहीं हुआ जी। हाँ, लेकिन राजीव जी ने जो 1989 में पास किया वो 1/3 रिजर्वेशन इन पंचायती एंड नगर पालिका में है जी सर। वो आज भी है और उनके बदौलत से ये सोच किसकी थी सर? ये सोच हमारे राजीव जी की थी। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब उसको री इंट्रोड्यूस किया वो दोनों हाउसेस में पास हो गया जी, है ना सर। उसके बाद फिर से सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे उसको राज्यसभा में पास किया है, लेकिन लोकसभा में आज तक नहीं लिया है सर। ये लोग कम से कम इतिहास तो पढ़े सर। बीजेपी के लोग जो है वो कम से कम, वो बहुत पुराना इतिहास नहीं, लेकिन 1989 से आज तक का तो इतिहास पढ़े सर। चलो उनको 42 से इतिहास उनको रास नहीं आता है, उनको लगता है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है 1942 से, तो वो कम से कम 1989 से तो वो लोग पढ़े सर। सोनी साहब, बीजेपी का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन एज पर कांग्रेस। सोनी साहब, दे से बीजेपी सेज द वुमेन रिजर्वेशन एज पर कांग्रेस बिगिंस विद इंदिरा गांधी एंड एंड्स विद प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। बोले कांग्रेस तो इसके आगे देख ही नहीं सकते। तो भले ये कहे कि राजीव गांधी ने लाया था, नरसिम्हा राव ने संशोधन किया, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास कराया था, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट ही सेज यू आर नॉट कमिटेड टू द कॉज। आप कमिटेड कॉज। टुडे यू सी दैट देयर इज a slight chance that BJP, Mr. Modi, Narendra Modi might come out with a googly and come out with a women reservation bill। तो अचानक आप लोग चलाना शुरू कर दिया। तो how do you see the charge that for you the Congress, it begins with Indira Gandhi, Sonia Gandhi and ends with Priyanka Gandhi? That's women reservation for you. Pradeep ji, in other words, they are insulting the other women leaders of their own party by saying so. Sir, their own party leaders are there into from the reserved seat or not. They are there into the parliament or not. In 1947, when India became independent, after that, whenever the first elections were held, what was the women
percentage into the house and see how much it is today. Sir, we have gone a long way. But then when people think that we have come into existence in 2014 only, then I have nothing to say there. Let them say whatever they want to say. We will focus only on the real issues, that is price rise, unemployment are the basic issues what we want to bring it to in front of the people of India. लेकिन सर प्राइस राइज के ऊपर तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है सरकार की तरफ से। सर हम लोग बात करेंगे सर जी। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग इसके ऊपर बात किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, सर ये हम लोग सोचेंगे सर। नहीं, आपको सोचना ही पड़ेगा और आपको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल तो देना पड़ेगा ना। आपकी अर्थव्यवस्था का एक विकल्प क्या है, क्योंकि मोदी जी का जो विकल्प है, और आज मोदी जी ने तो बड़ी अच्छी बात करी है। फॉर एग्जांपल इन पार्लियामेंट इट वाज अ वेरी यूनिफाइंग स्पीच, इट वाज नॉट अ नास्टी स्पीच। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो G20 की सफलता है वो 142 करोड़ लोगों की सफलता है, और उन्होंने पूरी तारीफ करी। आज मतलब 1950 से लेकर के 52 से लेकर के अब तक जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जितने भी स्पीकर्स रहे हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों की तारीफ करी है उन्होंने तो आज। सो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी भरत सोनी साहब। सर उनका तारीफ, राजीव जी, उनका तारीफ करना, नेहरू जी का नाम मिटा देना मेमोरियल से और बाद में आज तारीफ करना, ये दोगली नीति हमें पता है सर। सो वी आर नॉट मच बॉदर्ड व्हाट ही सेज अबाउट दिस। और रही बात G20 के सक्सेस की, तो G20 के सक्सेस के बाद, सो कॉल्ड सक्सेस के बाद तुरंत जाके बाइडेन साहब ने क्या कहा दूसरे देश में जाके, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और सर दो बड़े देश तो उसमें आए नहीं, चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया। सर आए सर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब आए और चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए सर। लेकिन सर उनके प्रेसिडेंट तो नहीं आए ना सर। नहीं आए, व्हिच इज ट्रू। मोदी साहब ने कहा आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विकास इसी पार्लियामेंट ने देखा है। आर्टिकल 370 इसी पार्लियामेंट ने देखा है। वन नेशन वन टैक्स इसी पार्लियामेंट ने देखा है, मोदी साहब का कहना है। जो GST था, वन रैंक वन पेंशन, दैट आल्सो दिस पार्लियामेंट हैज सीन। 10% रिजर्वेशन फॉर द पुअर, दैट आल्सो दिस। तो मोदी साहब ने अपने टर्म का बहुत सारी चीज गिरा दिया है, इंक्लूडिंग G20। नाउ हाउ डू यू सी दैट? इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ, जो बोलते हैं ना, अपने praise, self-praise, I have achieved so much from 2014 to 2023. How do you see that, sir? सर मोदी जी उन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी 2014 में, उसमें से कितनी प्रॉमिसेस पूरी की, उसके ऊपर बोलना चाहिए सर। वन नेशन वन इलेक्शन बोलने के बजाय वन नेशन वन बिजनेसमैन कहिए, वन नेशन वन एजुकेशन कहिए सर। ये वन नेशन वन, एटलीस्ट एक घर में एक एम्प्लॉयमेंट देंगे ऐसा कहिए सर। ऐसा कहीं उनके दिमाग में नहीं आता है। उनको सिर्फ क्या है सर कि उनका नाम कहां पर हो, एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स, वो एक प्रचार का माध्यम है उनके पास। और सर देखिए, जब तक आप महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने का नहीं सोचोगे सर, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि भाई हम विदेश में जो काला धन पड़ा हुआ है वो लेकर आएंगे, ये किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था बोलने के लिए। और उसमें भी देखिए सर प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहकर किस प्रकार से झूठ बोला जाता है कि वो जो बाहर काला धन पड़ा है वो जैसे आएगा उसमें से टैक्स भरने वाले को पहले दिया जाएगा। तो सर ऐसी बातें मोदी जी को शोभा नहीं देती। और सर सरासर लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहना, ये हम चाहते हैं सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, हम कभी उनको ओछा नहीं करते। लेकिन सर वो जो प्रधानमंत्री की गरिमा है, वो गरिमा के नीचे आकर बात करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है सर। सोनी साहब आगे जाके उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भी इस पार्लियामेंट ने देखा। दे सॉ इमरजेंसी हियर। लोकतंत्र को किस प्रकार से गला घोटा गया था। एंड देन ही सेज बट डेमोक्रेसी वाज आल्सो रिवाइव्ड एंड दिस पार्लियामेंट सॉ इट। सो ही वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉट शॉट्स वेयर कांग्रेस वाज कंसर्न्ड। बोले इमरजेंसी भी आपने गले घोटे
और जो अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी और यू नो द कांग्रेस द बॉयकॉट ऑफ सम पार्ट ऑफ द मीडिया, सम पार्ट ऑफ सेलेक्टिव बॉयकॉट ऑफ मीडिया, तो इनडायरेक्टली यह प्रश्न उठता है कि आप लोकतंत्र के बारे में बात करते रहते हैं. यू से दैट you will save democracy. That is what Rahul Gandhi said last week. He said Congress will save the institutions from the total hounding by the BJP government. But then you are also doing the same thing, Soni Saab. आप भी लोकतंत्र को खात्मा ही तो कर रहे हैं when you say selectively block some media persons, and how do you see that? Is it not a blot on democracy? प्रदीप जी 1975 में जो इलेक्शन जो इमरजेंसी डिक्लेयर की और प्रेस सेंसरशिप ला दी, उसके पीछे का कार्यक्रम क्या था? उस समय के रेलवे मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया गया था और हमारे देश में किस प्रकार से जो देश की सुरक्षा व्यवस्था थी उसके ऊपर किस प्रकार से खतरा था. और सर इमरजेंसी के दौरान देखिए, हम मुंबई में रहते थे उस जमाने में, तो सब कुछ बिल्कुल टाइम पर चलने लग गया था. बिल्कुल सब कुछ सब जो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेमवर्क में सब ट्रेन टाइम पे, बसेस टाइम पे, सब जगह पे सफाई, कोई रेलवे लाइन क्रॉस भी नहीं करता था. तो उस प्रकार से इमरजेंसी में सिर्फ प्रेस सेंसरशिप भी हुई और प्रेस के ऊपर ही हुआ, ये नहीं हुआ सर. और आज भी कैसे है सर, हर मीडिया हाउस को पहले रिपोर्ट करना पड़ता है वहां पर, ये मैं छापूं कि नहीं करके, उसके बाद ही छापा जाता है. तो वो जो हिडन सेंसरशिप है हमारे देश में अभी चल रही है, वो सारे लोग जानते हैं. और सर मैं आपका दूसरा प्रश्न के ऊपर आता हूं कि हमने जो सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर हमने जो ब्लॉक किया है सर, वो वही मीडिया है जो जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, और वही मीडिया है जो जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं. वो दो शब्दों के बीच में से अर्थ का अनर्थ बना के लोगों के सामने ला रहे हैं. और सर मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने किसको इंटरव्यू देना है, मुझे किसके शो पे जाकर मुझे डिबेट करना है, ये मेरी पार्टी सोचेगी, हम लोग सोचेंगे. वो लोग हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं. तो हमने वैसे ही मीडिया को हमने ब्लॉक करने के लिए कहा है कि जो लोग ऐसी नफरत की बातें फैलाते हैं लोगों में, सही बात है वो रखने में नाकाम रहे हैं आज तक. इसलिए हम लोग ने इंडिया अलायंस के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने ऐसे नक्की किया कि ये 14 या 16 जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके ऊपर हम लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे. सर बैन करना मीन्स ये नहीं कि हम लोग उनको कुछ छपने नहीं देंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्रवक्ता जो है, हमारा स्पोक्स पर्सन है, वो इन चैनलों पे नहीं जाएगा. सॉरी साहब, उन्होंने आगे जाके प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, लुक एट दिस पार्लियामेंट, आई एम प्राउड ऑफ दिस पार्लियामेंट बिकॉज दिस पार्लियामेंट जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला को आज इस देश का प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट ने देखा है. That was something for everybody, every Indian to be proud of, that the most poorest of poor, the most backward person from any race, caste, color, religion, you can rise up to a great post of the Prime Minister, and that is something wonderful about democracy. That was Mr. Modi said, and he was proud of it. That फिर आगे जाके आपको उपदेश भी देते कि अब रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ. Stop continuously criticizing every Modi's policies और देश के लिए कुछ करने के लिए काम पे लग जाओ. That's what he said. रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ. सोनी साहब. सर हम लोग बिल्कुल काम पे. सर हमारा अपोजिशन का काम क्या है सर? अपोजिशन का काम है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में अच्छी बातें बोलना. सर जब आर्टिकल 370 हटा था तब हमारे लोगों ने भी कहा था कि आपने अच्छा काम किया है. सर हमने ये नहीं कहा था कि गलत है, लेकिन सर वो हटाने के बाद आज कश्मीर में अगर जो लोग मारे जाते हैं, आपने कहा था कि बिल्कुल सब कुछ अमन हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ एकदम शांति बहाल हो जाएगी. I think you are being unfair. I think you are being slightly unfair. The fact is that as far as terrorism is concerned in Kashmir, it has come down. On that there is no doubt. Business has prospered, tourism has gone up. ऐसी बात तो नहीं है सर. ठीक है, अभी ये इंसिडेंट हुआ है. What did you expect? आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी? G20 के बाद इतने ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर आए. चलिए रशिया और चाइना नहीं आए अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज you pick up all these small things
कि भाई रशिया नहीं आया, चाइना नहीं आया. Vladimir Putin is anyway not going out of Moscow right now. He's not even traveling within the Russian Federation. And Mr. Xi Jinping is quite under pressure from his own Communist Party. But the rest of the world was here. Everybody was here, including Prime Minister Trudeau of Canada. That, you know, we don't get along at all with Canada. In spite of that, all this is there. So just to pick up this one incident is somewhat unfair. That's my opinion. और दूसरी चीज, सर आपने कहा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई. एलन मिश्रा साहब वॉज द रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा साहब से समस्तीपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. वो बॉम्ब ब्लास्ट 2 जनवरी 1975 को हुआ. 2 जनवरी 1975 को, 3 जनवरी 1975 को उन्होंने दम तोड़ा एलन मिश्रा साहब. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जगमोहन सिन्हा उन्होंने एक जजमेंट दी इंदिरा जी की इलेक्शन के खिलाफ इन फेवर ऑफ राजनारायण जी के वकील शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण के पिताजी, और इंदिरा जी के वकील थे नानी पालकीवाला. This was the first time that a prime minister, sitting prime minister in India, was actually cross-examined in the High Court, in the Allahabad High Court. Indira Gandhi was actually cross-examined. 12 जून, ये डेट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 25 जून को इमरजेंसी लग गई. सर कहाँ 2 जनवरी और कहाँ 12 जून. सर सीधी सादी बात है, इंदिरा जी हाई कोर्ट में हार गई. हर इलेक्शन वाज हेल्ड टू बी इनवैलिड, जिसकी वजह से शी हैड टू पुट द इमरजेंसी, शी हैड टू इम्पोज द इमरजेंसी. सर सच तो बोलिए ना. ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरजेंसी के दौरान द ट्रेन रन ऑन टाइम, द बसेस वर क्लीन, द स्ट्रीट्स वर क्लीन, एवरीबडी वाज वेरी अफ्रेड. हर एक कोई अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है. और तो और छोड़िए, even the policemen were very polite, whether it was in Delhi, whether it was in Lucknow, whether it was anywhere else. सीधी सादी बात है. और अगर आपका संजय गांधी जी की जो स्टेरिलाइजेशन कैंपेन थी, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन कैंपेन, अगर नहीं होती ना तो इंदिरा जी जीत के आ जाती 1977 में. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो मेरा ये कहना है सर, कांग्रेस इज अ वेरी स्मार्ट पार्टी, बहुत अकल वाली पार्टी है, बहुत अकल वाली पार्टी है, लेकिन वो अपना अकल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है. सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज की तारीख में यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. 5 स्टेट्स आर अबाउट टू गो फॉर पोल्स, और वहीं पर उदयनिधि मरन साहब उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो HIV है, कोविड है, मलेरिया है, उसको खत्म कर देना चाहिए, टाइफॉइड है. सर इसको आप तो भारतीय जनता पार्टी को हथियार दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं सर? सर देखिए, हमारा जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस के हर नेता को अपनी बात रखने का हक है. ये इंडिया अलायंस में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको सारी बातें पूछ के करेंगे. इंडिविजुअली वो लोग अपनी अपनी बातें रखने के लिए, उनके राज्य में जिस प्रकार से है उस प्रकार से बातें रखने के लिए वो खुले हैं सर. लेकिन हमारी पार्टी ने उस सनातन धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया. हम लोग सर्वधर्म समभाव मानते हैं. सर बोला आपने, कार्ति चिदम्बरम साहब ने बोला है, खड़गे साहब के सुपुत्र ने बोला है, और उन्होंने सपोर्ट किया है उदयनिधि स्टालिन साहब. सर वो लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं है ना सर. सर पार्टी ने क्या कहा है, हमारे जो बड़े नेता है सर, उन्होंने क्या कहा है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, और उस प्रकार से हम लोग हर धर्म को मानते हैं. और हम लोगों को सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रवक्ता को बोलने के लिए मना किया गया है. हम लोगों को नहीं बोलना है. ये प्रदीप जी, तेलंगाना में सोनी साहब, यू गॉट द 6 गारंटीज, एब्सोल्युटली 6 गारंटी, और आपके गारंटीज आपको चुनाव जिता रहा है. We saw it in Karnataka, and the same thing is being repeated. Yes. You got something for the woman, something for the student, something for senior citizens, something for farmers. You're giving, you're allotting land for houses. जिसके पास घर नहीं है, उनको आप land allot कर रहे हो घर बनाने के लिए, और उनको लोन भी दे रहे हो. You're doing a fantastic thing. 100 यूनिट से 200 यूनिट भी आप लोगों को दे रहे हो free. Now this is great. This is absolute. This is going to win you elections. You are working on गरीब कल्याण योजनाएं जो आपने कर्नाटक में शुरू कर दिया है, सब स्टेट जहां है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 5 के 5 स्टेट आप जीतेंगे. ये आप लोग ने संकल्प लिया है. बीजेपी की तरफ से कोई पिक्चर निकला है, रजाकर्स, तो क्या
तो क्या इससे खतरा है आपको? बिकॉज दैट इज हाईलाइटिंग किस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था ड्यूरिंग द निजाम रूल, including Mr. Kharge, yes, including Mr. Kharge's own father and sister. सो ये रजाकर्स पिक्चर कितना डैमेज करेंगे? एक तरफ है आपके गरीब कल्याण योजनाएं जो सक्सेसफुल चल रहा है, कश्मीर फाइल्स, अलग अलग फाइल्स, देन यू हैड फ्रॉम मूव केरला, तो उसके बाद रजाकर्स. हाउ डू यू सी दिस अप्रोच सर? सॉरी सर. सर, कश्मीर फाइल का जो जवाब है वो जवान ने दे दिया. हाँ, तो हमें कोई कश्मीर फाइल से डर नहीं है. जवान पिक्चर ने जो पूरा है उसने उसका जवाब दे दिया है. सर पठान तो ने सर दिया था हमें कि जवान ने दिया? चर्चा करनी नहीं है. रही बात तेलंगाना में और दूसरे जो राज्य जहां पर हम लोग चुनाव में जाएंगे, तो सर देखिए, हमने जिन राज्यों में, जैसे हिमाचल के अंदर, फिर हमारे जो अभी कर्नाटका के अंदर, जहां हमने जो वादे किए हैं वो हमने पूरे किए हैं और हम लोग हर वादा पूरा करेंगे. क्योंकि ये जितनी भी गारंटीज दी जाती है इसके ऊपर पूरा मनोमंथन करके हमारी जो रिसर्च टीम है वो सब पूरा उसका आगे पीछे देखकर उसको, और इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें देखकर हम लोग ये जनता के सामने ला रहे हैं. और सर जो बीजेपी क्या कर रहा है, जनता के पास से सारा पैसा लेके उनके मित्रों को देने का काम कर रही है. हम लोग तो क्या है, हम लोग जो देश के अंदर जो हो रहा है वो जनता को देने का महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, ये आपने कहा है, साथ में ट्रैवल फ्री. बिल्कुल सर. अगर आप ये कर पाए तो मतलब जबरदस्त. महालक्ष्मी स्कीम है, महिला को 2,500 प्रतिमाह मुफ्त बस यात्रा और गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में. जी दुरुस्त बात. स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन फैंटास्टिक. सीनियर सिटीजन्स को भी पेंशन, रियली फैंटास्टिक. फार्मर्स को अलग अलग तरीके से हेल्प, कर्ज माफ, अलग अलग. And by the way, you know, Pradeep ji, the ironical thing over here is this. Yeah, it's very ironical. It's not. I'm not saying it only because Mr. Bharat Soni is sitting in front of us right now. You know, the BJP used to demand this as Bharatiya Janata Sangh. The BJP used to demand this when at the time when Mrs. Gandhi was in power. Today the BJP is opposing this. I mean, ये क्या है? मतलब the whole thing is turned upside down. ये क्या हो रहा है sir? Because after all, we have to decide whether we are a welfare state or not. Are we a welfare state or are we a corporation? Sir, बताइए. Rajiv ji, I have been working for Congress Party ever since Jansang days. Yes. So Jansang people were not that bad. I love the way you say ever since Jansang days. That means you were a Congress mole in the Bharatiya Janata Sangh. Isn't that right? Sir, जी क्या है, I was basically in Congress only, but I have seen Jansang people working for that. So हम लोग ऐसे बाहर एक बार प्रचार हो जाए, इलेक्शन का काम हो जाए, उसके बाद we are friends also, कि देश को किस प्रकार से आगे ले जाना है, लोगों को किस प्रकार से इसका बेनिफिट्स पहुंचाना है, ये सारी बातें हुआ करती थी. लेकिन सर आज का जो है ना, 2014 के बाद जो माहौल बना है, भाई को भाई के सामने, पत्नी को पति के सामने, सर एक जो नफरत की जो राजनीति लाए हैं ना सर, वो हमारे देश बात को नहीं करते क्या? संगी, जितने भी आपके संगी दोस्त थे आजकल बात नहीं करते आपसे? नहीं, बिल्कुल बात करते सर. लेकिन सर ये जो एक नया एक जो आया है ना, एक मोदी भक्त, वो लोग समझते नहीं. वो लोग क्या सोच रहे हैं कि इस देश को जो आजादी मिली वो 2014 में मिली, उसके पहले देश ही नहीं था ये. तो ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल गलत फैला रहे हैं सर. और ऐसा गलत लगता है कि ये अभी सक्सीड करेगा? बिकॉज आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, वेरी लॉजिकली स्पीकिंग, जिस तरीके से अभी व्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से अभी हम लोग चल रहे हैं. और दूसरी चीज क्या है, सॉरी फॉर आस्किंग दिस नाउ, आई शुड हैव आस्क्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग व्हेन वी केम टू यू. सर क्या है उस तरफ, क्या देख रहे हैं सर? कुछ है उस तरफ क्या? जरा सीधा कैमरे की तरफ देखिए ना सर, उस तरफ क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? कुछ है क्या वहां पे सर? नहीं, अगर कोई है तो am I disturbing you? मैं वापस आता हूँ आपके पास. आई विल कम बैक टू यू. जी चलिए, आपने सामने रखिए सर, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, वी डोंट माइंड. सर आपसे ही जानना चाह रहा हूं, अभी जो आपने बात करी, जैसे कश्मीर के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, एक कर्नल साहब, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायूं फहीम भट्ट, और उसके अलावा एक राइफलमैन, इनकी मौत हो गई सर.
बहुत बुरी तरह शहीद हो गए। सर अभी तक दिस इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस, प्रदीप जी, हम डेज को 5 डेज को 6 डेज को 5-6 दिन तो हो गए सर, अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ हमारी तरफ से। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई मीन when Modi ji came to power, all of us supported Mr. Modi because of the fact that he said there will be a very robust response from India and a fitting response from India to any act of terrorism. Why do you think there has been no response as yet to this act of terrorism? मतलब ये तो, और ये एक्सपेक्टेड था कि भाई G20 के बाद, चंद्रयान के बाद, आदित्य L1 के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे कि भाई आप सतर्क रहें। I'll be very frank with you. You know, Manish and everybody else were saying the same thing. So why do you think there has been no response so far? अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ है? राजीव जी, यही हमें डर लग रहा है कि देखिए हमारे ड्रोन कैमरास जो है ना, वो उसके ऊपर देख रहे हैं, उनको दिख रहे हैं इतने सारे टेररिस्ट, लेकिन हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे उनको? हम लोग सर, हमारी मिलिट्री इज सेकंड टू नन, तो सर उनको आप ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो? यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसे वैसे ही आज आपने ये जो जिस प्रकार से लोग शहीद हुए हैं उनको देखेंगे, उनके घर वालों को देखेंगे तो हमारा दिल दहल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं अभी तक कुछ हो रहा है सर? ये हमें भी प्रश्न पड़ रहा है कि आप कब एक्ट करोगे। और दूसरी बात सर चाइना इंकर्शन के ऊपर भी देखिए सर, चाइना हमारे यहाँ पर कितना अंदर घुस आया है, उसके ऊपर आज तक प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ लाल आंख नहीं दिखाई। और सर चाइना के सामने इनको बोलने को क्या, कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया है चाइना। राहुल जी जब वहां पर लद्दाख में गए, जब वो बाइक रैली में से लद्दाख में पहुंचे, तब लद्दाख के लोगों ने उनको कहा कि चाइना इतना अंदर घुस आया है। और राहुल जी बार बार ये कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सुरक्षा मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे होम मिनिस्टर है, ये कब एक्ट करेंगे, ये हमें भी बड़ा प्रश्न पड़ रहा है सर। तो सोरी साहब, अमॉन्ग द अदर थिंग्स दैट मिस्टर मोदी क्लेम्ड, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक्चुअली आपका जो इस चीज का विरोध लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर मिश्रा ने किया था। बोले राहुल गांधी's motorcycle expedition was a great thing, but I would like to tell him that not an inch of Ladakh has gone to the Chinese or the Chinese occupation. That is what Brigadier Mishra, Lieutenant Governor of Ladakh, said. He said not an inch of it, not an inch has gone. But Rahul Gandhi ji ne kaha ki talk to the people and he said most of the grazing land is under Chinese occupation. That was what the residents of Ladakh had told him. Now there's a glaring contradiction जो बोलते हैं ना, one Rahul Gandhi, very responsible leader, on a bike expedition going जमीनी हकीकत से वो पूरे देश को बोल रहा है कि there is occupation, and the governor, lieutenant governor, challenging Mr. Rahul Gandhi, says not 1 inch of Indian land is under Chinese possession. Now how do you counter LG's claim? प्रदीप जी, सॉरी सर, प्रदीप जी, जब ये राहुल जी वहां पर बाइक रैली के द्वारा जब लेह और लद्दाख में पहुंचे, उसके आखिरी दिन जब पब्लिक मीटिंग थी वहां पर, तब वहां की जो ऑटोनोमस बॉडी है और जो स्टेट बॉडी है, जो लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, वो लोग भी वहां पर थे। उसमें पहले बीजेपी भी थी सर। उस जो बॉडी, एपेक्स बॉडी, और जो वहां की जो उसका नाम है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ में बीजेपी के भी लोग थे सर। लेकिन उनको जब ये पता चला कि ये लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, तब वो वहां से उसमें से निकल गए सर। वो लोगों का भी कहना है कि चाइनीज अंदर घुस आया है सर। राहुल जी अपने आप को कोई मन घड़ित बात नहीं कर रहे सर। अगर आप कहोगे तो राहुल जी को आप झूठा बताइए कि भाई ये गलत है, और सर कहिए कि नहीं है। राहुल जी तो बिल्कुल अभी भी बोल रहे हैं कि वहां पर अंदर घुसा हुआ है चाइना। So, but among the other things that this Narendra Modi ji's का claim, now you've talked about Kashmir, Ladakh. मोदी साहब का claim है कि 13.5 crore people have been uplifted. 13.5 crore people have uplifted
from poverty, below the poverty line, and Mr. Modi has elevated them to the new middle class. He says that's an achievement. That's an achievement that has been praised all over the world. The United Nations, everybody, जो भी responsible at developed nations, they all praised it a great move of uplifting the people below the poverty line and to such a huge extent, 13.5 crores, Soni sahab. Now how can you negate that, Mr. Modi? आप बोलते कि ये 9 साल कुछ नहीं हो गया, ये अमृतकाल नहीं है जैसे आप कहते. How can you negate it? It's on record, 13.5 crores, sir. Pradeep ji, uplifting the people below poverty line just by giving them, 5 kg of ration or 5 kg of pulses, wheat and everything is no upliftment. You give them jobs. सर, आप जब तक उनको जॉब नहीं दोगे, आप जो वहां के युवक जो बेकार है उनको आप नहीं दोगे, तो आज हम लोग 80 करोड़ हमारे देश की आबादी के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हम लोग अनाज दे रहे हैं और उसमें अपना बड़प्पन मान रहे हैं कि हमने 5 किलो देकर हमारा 80 करोड़ लोग, सर 80 करोड़ लोग उसके ऊपर जी रहे हैं. सर, दूसरे बाकी सर, यू आर अज्यूमिंग, एक मिनट, एक भरत सोनी साहब, आप ये अजम्पशन ले रहे हैं कि वो जो खाना मिल रहा है सिर्फ उसी खाने के ऊपर जी रहे हैं. अरे भाई, वो खाने का उनका खर्चा जो है बच रहा है ना, बाकी तो पैसे कमा रहे होंगे ना, बाकी तो काम कर रहे होंगे ना. कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सबके सब बिल्कुल मतलब लेकिन राजीव जी, 80 करोड़ को देना मीन्स क्या बात हुई सर? 80, ये कोई हमारी क्या सिद्धि है? ये कोई हमारी उपलब्धि है सर? 80 करोड़ को देना सर, तो बाकी के 60 करोड़ भी दे दीजिए, हम भी आराम करेंगे, पूरा डेटा और लेके हम लोग बैठ जाएंगे घर. I think it's a great achievement, sir. The very fact that we are able to feed 80 crore people free of cost. Sir, I think sir, it's a great achievement हम लोग on the कांग्रेस part of पार्टी, any government, राजीव जी, and I think the Congress should acknowledge it, sir. Sir, we acknowledge, but what we say, sir, what is our thought process, that we have to give them jobs. So in effect, what you're really saying is, create jobs. sir, this is a separate issue. What I'm saying is feeding people and not allowing them to go hungry is a separate issue. Number of jobs created is what you can find out. Because, by the way, the job data is not being released. I think you should agitate for the fact that employment data per se, the way it used to be released during Dr. Manmohan Singh's time, is not being released anymore. So maybe you should agitate for that. Where is that data? Sir, employment data आजकल बाहर नहीं आ रहा है, sir. Labor Ministry is not releasing. Sir, that is why we call NDA is a no data available government. Yes. Which is not. इनके पास कोई डेटा ही नहीं है, ये डेटा देते नहीं है, क्योंकि डेटा देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे. सर, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आप दोगे नहीं और सर डेटा कहीं से मिलेगा नहीं, तो हम लोग किस बेस पे बात करेंगे? सर, डेटा अवेलेबल ही नहीं है. सोनी साहब, मगर ये क्या सही है? पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन का मोड चल रहा है. मराठा रिजर्वेशन हो गए, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है. नाना पटोले जी ने सीधा आरोप एकनाथ शिंदे जी पे लगा दिया है. बोले कि एकनाथ शिंदे जी ने मनोज जरंगे पाटिल जी को तैयार किया था आंदोलन के लिए. दैट इज व्हाट नाना पटोले सेड. बोले कि ये मराठा जो आंदोलन जलना में हुआ था, इसके पीछे एकनाथ शिंदे जी का हाथ है. नाना पटोले जी आगे जाकर कहता है कि इन पे लाठी मार हुआ, who were beaten by लाठी चार्ज, there's all under the direction of देवेंद्र फडणवीस, the home minister. Now इतना सीरियस आरोप नाना पटोले जी ने लगा दिया है, and especially when the entire Maharashtra is unrest. आज ओबीसी का उग्र आंदोलन नागपुर से शुरू हो गया. They want to come and घेराव महाराष्ट्र मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय. तो आप इस चीज को कैसे, was it right in Nana Pattoni's to accuse the chief minister and home minister? How do you see it, sir? Sorry, sir. Pradeep ji, how we see this issue, Pradeep ji, how we see this issue. Sir, when Devendra Fadnavis was in opposition, he said it is a matter of time. You give me power, within 4 days, I will see that the Maratha reservation is given. Okay, and that too not at the cost of OBCs. This was the words of Mr. Devendra Fadnavis ji. Now, what is, उनको क्या रोक रहा है सर? देवेंद्र फडणवीस जी को कौन रोक रहा है रिजर्वेशन देने के लिए? और आज वो कहते हैं
कि क्योंकि उस समय का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मराठा रिजर्वेशन के ऊपर ठीक से नहीं किया, इसलिए हम लोग हार गए वहां पर। तो सर अभी कौन सा आपको कौन रोक रहा है? अभी तो देखिए सर, अभी जहां पर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो अगर लोगों के हक में है तो उसका सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देती है, तो इनको कौन रोक रहा है सर? रही लेकिन बात आज की सर तारीख में मराठा को भरत सोनी साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा है वो शायद आपने सुना नहीं अच्छी तरीके से, कि आज की तारीख में जितने अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको अब ये लग रहा है कि उनका रिजर्वेशन जो है वो कट जाएगा, उनका जो आरक्षण है वो कट जाएगा मराठा में कुंभी समाज को देने के लिए। तो जिसकी वजह से आज वो बड़े उत्तेजित हैं, नागपुर में उनका एजिटेशन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं पूरे मुंबई में मंत्रालय का घेराव करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जाति को जाति से लड़ाई करने की प्लान है क्या है? सर राजीव जी, क्या मैं हो रहा उसी पे है? आ रहा हूं सर। देखिए सर, रिजर्वेशन का कैप कितना है सर? सर रिजर्वेशन का कैप 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अगर आप एससी को 13% दोगे, एसटी को 7% दोगे, नॉमेडिक ट्राइब्स और वीजेटी को दोगे और 27% अगर इनको दोगे अपना ये जो ओबीसी है, तो आप इनके बीच में से वेयर विल यू कार्व आउट द रिजर्वेशन फॉर मराठास? That means और it सर will go above मराठा में भी 50%. कैसा इन लोगों को धूल झोंकने का काम कर रहे हैं सर जी, it will कि go above उसमें भी 50%. जो कुनबी रहेगा, जो कुनबी रहेगा उसी को देंगे। So sir, now how will people get the Kunbi certificate so fast? See, all the Marathas now are not Kunbis. That's right. That No, is but- absolutely correct. Sir, And quite a that few of is them why, are sir, agitating. ये For example, OBC Mr. Narayan नागपुर में Rane, Narayan Rane, who is a BJP leader and a minister in the central government, he said, I am not a Kunbi. All Marathas are not Kunbis. सबको आप कुनबी सर्टिफिकेट नहीं दे Exactly. सकते जी। एग्जैक्टली। तो सर ये गवर्नमेंट का काम है कि जो ओबीसी वहां पर ये कर रहे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे नागपुर के अंदर, उनको सहानुभूति देना और उनको एश्योरेंस देना कि ये आप में से नहीं है। ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है सर। लेकिन सर, आप see, ये बताएं सर, मराठा रिजर्वेशन का मतलब जो है सर, दिस इज द सेकंड टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट इट, बिकॉज दे से मराठास पर से डू नॉट फिट इनटू the definition given by the constitution and even by the Mandal Commission of other backward classes. That is, they are not socially backward. They may be economically backward right now. They may be economically weaker sections right now, but they are not socially backward. तो socially backward जितने लोग हैं उनके तहत उनको OBC रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, EWS में मिल सकती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें मिल सकती है, जिसकी इनकम, जिसकी आय जो है फॉर एग्जांपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको रिजर्वेशन मिल सकती है। Now, my point is, why doesn't the government today explain this to everybody, and why doesn't the Congress take it up properly? कि भाई ये जो परिभाषा है इसमें मराठा रिजर्वेशन फिट बैठता नहीं है, तो ये तो आपको संशोधन लाना पड़ेगा संविधान में सर। राजीव जी कैसे है? राजीव जी, सी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1950 जो है ना, वो किसको है? जिसने अनटचेबिलिटी फेस किया उसके लिए है, सोशली बैकवर्ड के बेस के ऊपर दिया है, वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है। नहीं सर, जब मंडल कमीशन आया तो उसने कुछ बैकवर्ड क्लासेस जो थे who were not included into that scheduled caste and scheduled tribe act because they did not suffer untouchability but they were backwards, जैसे तेली हुए, ऐसे सब लोग, तो उनको इंक्लूड किया। लेकिन सब अब जब ये आप लोग जो मराठा को आप लोग उकसा रहे हो और जो मराठा को आप लोग प्रॉमिसेस दे रहे हो, इनको एक बार बता दीजिए कि आपको इसके तहत आपको कैसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। सर, अगर जो बैकवर्डनेस की फॉर एग्जांपल मंडल कमीशन में सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए एक प्रावधान है जिसको आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेट्स बी वेरी क्लियर। बिल्कुल सर, हाँ, लेकिन मंडल कमीशन में भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका ये परिभाषा उसकी ये है कि इनका भी सामाजिक शोषण हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह यादव हो गए, कई जगह पे जाट हो गए, कई जगह जाट नहीं आते हैं, किसी स्टेट में जाट आते हैं। हरियाणा में फॉर एग्जांपल जैसे बिश्नोई हैं, कई जगह पर हैं, कई जगह पर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में अंसारी हैं, अमंग द मुस्लिम्स दी अंसारीज कम अंडर ओबीसी। और कांग्रेस के टाइम पे, इनफैक्ट शरद पवार जी के टाइम पे
दे वर पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी मिली है उनको। और कर्नाटक में भी कुरैशीज, अंसारीज, अपने मोचीज and a couple of other Muslim castes, they had reservation which was cancelled by the BJP, which has been restored now by the new Congress government of Mr. Siddaramaiah. But there is no provision as yet for economically weaker sections in the OBCs. What the provision is economically weaker sections, which the Prime Minister has brought about. EWS है जिसमें हर एक कोई कास्ट आती है, जो BPL है उसमें आती है। तो मेरा ये कहना है, तो मराठाओं को क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से दिया जाएगा आरक्षण, या इनको कुनबी या कोई और कास्ट में से लेकर के दिया जाएगा, कुनबी, दंगड़, कोई भी? सर आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बताएं। राजीव जी, जी राजीव जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप उनको, आप सिर्फ वो ऑप्रेस क्लास में नहीं आते हैं जी, हाँ, वो अनटचेबल में नहीं आते हैं, तो उनको आप कौन से बेस पे दोगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर। तो क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट वाली जी सर, ये तो अभी फडणवीस जी और जो देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी जो उनको एश्योर कर रहे हैं, उन लोगों ने सोचना चाहिए। हम लोग इसमें क्या बताएं सर? जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि ये क्या चल रहा है? मतलब ये तो फरेब हो गया ना लोगों के साथ, धोखाधड़ी हो गई लोगों के साथ। ये क्या हुआ? अरे भाई मराठा आरक्षण जितने लोग लीड कर रहे हैं उनको जाकर के आपको बैठ के बोलना पड़ेगा, भाई ये कानून है, इसके तहत हम लोगों ने आपको आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो गया है, अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपके लिए देंगे आरक्षण, क्यों नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी फनी प्रदीप जी, पहले कहा गया 4 दिन के अंदर जिया जाएगा, 4 डेज, फिर कहा गया 10 डेज, फिर कहा गया 1 मंथ। मगर कांग्रेस में भी बहुत मतभेद था इनिशियली। विदेटीवार ने बोला कि ओबीसी में कोटा में से दे दो करके जी, एंड देन ही हैड अ फ्लिप फ्लॉप द नेक्स्ट डे बिकॉज़ नाना पटोले जी ने खुद बोला कि ये क्या बोल रहे हैं आप बिना। तो इनफैक्ट नाना पटोले जी कास्टिगेटेड हिम, बोला कि हाउ कैन यू, दैट्स टोटली रॉन्ग पॉलिसी, हाउ कैन यू से दैट ओबीसी से ले लो। देन विदेटीवार खुद पलटी खाए, बोले नहीं ओबीसी नहीं हो सकता न्यू। तो डू यू थिंक दैट there's a great opportunity for the BJP, the special parliament session में अगर कुछ महाराष्ट्र में ठीक करना है तो pass some kind of act that Maharashtra also be included more than 50% or 17%, 18% जितना भी excess. Do you think ऐसा कुछ move हो सकता है that can calm the entire thing in Maharashtra? If center makes a law in the special parliament session, there's a chance. नहीं तो this is gone for 2024. How do you see that, sir? प्रदीप जी, आपके सामने मैं लीगल बात करना ये मेरे को शोभा नहीं देगा। आप जितना लीगल जानते हैं उससे मैं बहुत कम जानता हूं। सर, प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रीड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, then we cannot go beyond 50%. So where are they going to bring this additional 2% or 3%, whatever they are proposing to give? That is $1 million question. So they should not fool these people. सर, इनको आप जो धोखाधड़ी दे रहे हो, आप इलेक्शन को ध्यान में रख के जो काम कर रहे हो, वो गलत है सर। सर, इससे क्या होगा सर, इनको जब मिलेगा नहीं तो इनमें इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और जो लोग ये सब कायदे की बात नहीं समझते, जो बिल्कुल गरीब, सर इन मराठा ऑल्सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इकोनॉमिकली वेरी, वो कोई बड़ा किसान नहीं है वो सर। तो उन लोगों को क्या लगता है कि इनको मिलता और मुझे नहीं? इट इज ए कास्ट डिवाइड एट रूरल एरियाज। वंडरफुल। इससे सो व्हाट इज द प्लान सर? ये तो बता दो, आगे कांग्रेस की प्लान क्या है सर? आपके पास बहुत मुद्दे हैं, जबरदस्त मुद्दों की भरमार है सर आपके पास अब तो। अब आप ये बताएं कि किसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, कैसे लोगों को एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे अपने पीछे, सर ये तो बता दीजिए। सर 2024 ये इंडिया अलायंस का है। 2024 ये आपको लगता है 2024 में चुनाव होंगे? नहीं है सर, ये बीजे पार्टी का नहीं है, ये इंडिया अलायंस का है जी। इंडिया अलायंस। तो सर हम लोग मुद्दे लाएंगे सर 24, जैसे जैसे 24 नजीक आता है। अभी AIDMK ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि उन्होंने वो बोलते कि वी आर पुलिंग आउट ऑफ द NDA।
And BJP probably wants them to pull out. Yes. मिस्टर अन्नामलाई तो सनातन धर्म का झंडा लेके पूरे गली गली घूम रहे हैं. कितने लोग पुल आउट? So it's going to be tough. The BJP wants to eat into Jayalalitha's entire vote share. Yes. So There is a vacuum. That's a huge vacuum. And Junior Stalin had given them the opportunity. There was no BJP presence. Probably सनातन धर्म के झंडे लेकर अन्नामलाई might create a big impact where BJP is और concerned. कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका वोट हुआ करता था तमिलनाडु में, एक जमाने में तमिलनाडु में कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी सर. एवरीबडी, कामराज, राजाजी, निजलिंगप्पा, सब लोग आपके लोग हैं सर. आप There is a plan named as एक कामराज प्लान. एक कामराज प्लान हुआ करता था सर. राइट. दैट इज जस्ट अबाउट इट. थैंक यू सो मच सर. ऑल द वेरी बेस्ट यू. एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर. ओम श्री गणेशाय नमः. नमस्कार सर. ओम श्री गणेशाय नमः. गणपति बप्पा मोरिया. राजीव जी, प्रदीप जी, आपको आपको परिवार के लिए गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you so much, Thank sir. you so Really much. and truly wonderful. Really and truly Thank you so wonderful. much. Thank you very much. Isn't that lovely? Isn't that absolutely lovely? So the BJP spokesperson has run away. She doesn't want to talk. She says that she doesn't want to talk. Isn't that wonderful? She doesn't want to talk because she must have heard all of us talking about the Maratha reservation and everything else. She has nothing to say on that. And the MNS spokesperson was performing Aarti right now in his house, and he will be free, I think, in just a couple of minutes, and then after that he will join us. I hope so. Even if he doesn't make a difference. Now the point is, in terms of the Maratha reservation, Pradeep ji, don't you think that the BJP and the Eknath Shinde Shiv Sena group and the Ajit Dada Pawar NCP group, don't you think they're playing with fire over here because they're going to be exposed? They'll have to tell the truth. मतलब सच तो बोलना पड़ेगा ना उनको. Sir, either way, Maharashtra is till 2024 has become a burning pot. I mean, everybody out on the streets. Real Where melting the pot. Maratha agitation continuously. There also you saw, though it started by Manoj Jarange Patil, but it flared on to all the adjoining districts, and everybody was into some kind of सर जो exactly जो हुआ था राजस्थान में, yes, आपको याद होगा. बिल्कुल बिल्कुल. प्रदीप जी, राजस्थान में जो हुआ था, जब जाट रिजर्वेशन प्रॉमिस किया गया है तो बिश्नोई एजुटेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने. सारे ट्रेन व्रेन सब बंद कर दिए थे. राजस्थान के जितने भी एग्जिट और एंट्री रूट थे सब बंद कर दिए थे. उनका भाई बिश्नोइयों का जो रिजर्वेशन है उसमें से अगर आप देंगे तो हमारा कम हो जाएगा ना. That's the stupidest thing in the world for any government to do. And the Congress lost at that time, and Vasundhara Raje ji became chief minister on the promise कि जाटों को वो रिजर्वेशन देंगी जो आज तक नहीं मिला है. Anyway, Ashok Gehlot is doing a good job otherwise, offering all sorts of other things. At the moment, Manish Patre साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Manish Patre साहब, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय गणेश देवा, जय गणेश देवा. जी सर. और सभी हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. वंडरफुल सर, वंडरफुल. तो सर, अब गणपति तो आ गए, तो सरकार ने जो वादे किए थे वो गणपति के पहले सब कुछ होने वाले थे, वो हो गए क्या? आपसे पूछ रहा हूं सर. सरकार के जो भी वादे थे अभी तक वो सब जुमले ही निकले जी. लोगों को जो तकलीफ थी वो लोगों को चालू है. आप देख रहे होगे तो आज मैं पूरी कल रात हम लोग गणपति के लिए जो गाड़ियां छोड़ी थी लोगों को गांव जाने के लिए, उसकी सब तैयारी चालू थी. शाम को 5 बजे घर पे आके जब मैंने न्यूज देखी है, न्यूज में कम से कम 10 में से 9 न्यूज में सब जगह पे जो आंदोलन चालू है महाराष्ट्र में वही दिखाया जा रहा था. कहाँ पे ओबीसी समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे धनगर समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे मराठा समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे विद्यार्थी जो है उनके हक के लिए रास्ते पे है, तो कहाँ पे जो बेरोजगार तरुण है, युवक है, वो रास्ते पे है. ऐसी 10 में से 9 न्यूज खाली आंदोलन की चालू है. तो ये सरकार ने कौन सी बातें लोगों के लिए की है? राइट ऑन ऑल कमिटमेंट्स. एक भी कमिटमेंट नहीं पूरी नहीं हुई है सरकार की. कहने का मतलब ये हुआ सर, एक कमिटमेंट मेरे ख्याल से सरकार ने पूरी की होगी, जो कि जैसे कि आप मतलब हमें तो मालूम नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं
शिवसेना जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 50 खोके, और जी। वो लोग इनको कह रहे हैं कि इन्होंने बीएमसी का घोटाला किया। तो उन्होंने 50 खोके की जो कमिटमेंट थी वो शायद पूरी हो गई होगी, इसीलिए उनकी सरकार अभी तक मजबूत है। क्या बात है सर। पाटर साहब, आपने और आप बहुत विरोधी पार्टी जो है रविंद्र चौहान जी को गाजर सम्राट बुलाते हैं, गाजर सम्राट। ये गाजर सम्राट किस लिए बुलाते हैं? क्या वो रोड कंप्लीट किए हैं या सिर्फ होर्डिंग्स लगा दिए पूरे मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे के इधर से इस पार से लेके उस पार सर मेरा परसों का आप वीडियो देखेंगे तो कोकन के हर चैनल के ऊपर अपना बाइट था, उसमें रविंद्र चौहान ने बताया था कि ये रोड मैंने मोटरेबल ये वर्ड आप ध्यान में रखिए, मोटरेबल करने की कोशिश की है, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका दोष हमारा नहीं, हमने उसके लिए अटेम्प्ट किए, ऐसा कह रहे थे हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान। तो उनको मैंने कहा है कि ये जो चीज हो रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही इसमें दोषी हो, क्योंकि आप मिनिस्टर हो। आपने लोगों को ओपन चैलेंज दी थी कि गणपति के पहले कोकन के लिए एक लेन कंक्रीट की सीसी की चालू होने वाली है। आज आप देखिए लोगों को आज भी जाने के लिए 24 घंटा 36 घंटा लग रहा है सर, लोग परेशान है, ऊपर से एक्सीडेंट हुए। आपको मालूम नहीं होगा तो हेवी व्हीकल के लिए कोकन का रोड बंद किया था, लेकिन गए 4 दिन में जो एक्सीडेंट हुए उससे ज्यादा एक्सीडेंट हेवी व्हीकल के वजह से हुए हैं। तो रोड अगर बंद था तो हेवी व्हीकल आई कहां से? इसका मतलब सरकार को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा होता है क्या? या सरकार को किसी को पूछने की जरूरत नहीं बची है, सरकार को खाली ये पार्टी से कौन आ रहा है, वो पार्टी से कौन आ रहा है, यही देखने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि रविंद्र चौहान ने खुद के अभिनंदन के बैनर लगाए थे, और परसों जो इंजीनियर डे हुआ उस इंजीनियर डे के लिए मुंबई गोवा का जो हाईवे है वो बनाने वाले इंजीनियर का उन्होंने सत्कार रखा था सर। और ये सब सिचुएशन में खाली मन से एक ही पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी है। इनको इंजीनियर को ऐसा वैसा सत्कार नहीं, इनको पब्लिक में लाके छोड़ना चाहिए, इंजीनियर को भी और मंत्री को भी। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पाटरे साहब। लगे है ना वहां पे कोकन के हिसाब से उनका हिसाब लेना जरूर। पाटरे साहब, तो इनको शर्म नहीं आती क्या? इनको क्या लगता है कि जनता सवाल नहीं पूछेगी? जनता को सड़क नहीं दिख रही है क्या? इनको शर्म बिरम कुछ है नहीं, इनके पास ये बोलते हैं ना कि सत्ता की जो मस्ती है, ये मस्ती इनके ऊपर चढ़ी है। जनता ये मस्ती 100% उतारेगी। जनता तो मस्ती पाटरे साहब, एक चीज मुझे मानना है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि कोंकण का विकास के लिए हमने इतना पैसे दिए हैं, कोंकण का विकास के लिए हमने अलग अलग सरकारी और सेंट्रल स्कीम्स लेके वहां पर लोगों को बेनिफिट के लिए कर दिया है। उनका कहना, देव फडणवीस जी का कहना है कि ये सरकार ने सबसे ज्यादा काम किए है कोंकण में। तो आप बीच में बोल रहे थे कि रत्नागिरी में आप खुद घूम रहे थे, आधा एमआईडीसी तो ऐसे ही बंद है, एमआईडीसी के जितने भी फैक्ट्रीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, सब बंद है। तो विकास हुआ कहां पर है जो देव फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि जबरदस्त विकास हुआ कोंकण में? कहां विकास हुआ है पाटरे साहब? सर विकास हुआ है ना, लोगों को देने के लिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो घोषणाएं की जाती है, इनका विकास वहां तक की सीमित है। बाकी जो वास्तव है, वास्तव में विकास लोगों का कुछ हुआ नहीं है। रत्नागिरी एमआईडीसी में सबसे बड़ी कंपनी थी जेके फाइल्स करके, एक जमाने में बहुत बड़ा नाम था, उसके नाम से वहां पे स्टॉप था। आज की हालत ऐसी है, जेके फाइल बिक गई, वहां पे अभी नया कंपनी कोई आई नहीं है। आपको मालूम होगा कि विकास ये बता रहे हैं कोकण में 700 किलोमीटर का समुद्र का किनारा है। आपने देखा होगा मैप में, आप कभी घूमे होगे तो, रायगढ़ से लेके सिंधुदुर्ग तक, मतलब पनवेल से लेके पूरा बाउंड्री सी का है। और मस्त विद्यालय जो कि कोकण के लिए फिशरी कॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो फिशरी कॉलेज इंपॉर्टेंट है कोकण के लिए, बिकॉज वहां पे 700 किलोमीटर का समंदर किनारा है। उनके लोगों को वहां के समंदर के बारे में, फिश के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो फिशरी कॉलेज बना कहाँ पे?
या कहाँ पे बन रहा है? नागपुर में, जहां पे समंदर क्या नदी को भी पानी कब कब रहता है, पूरी बात नहीं। लेकिन इसमें कहना इतना ही है कि कॉलेज के स्टूडेंट को अगर फिशरी के लिए वो एडमिशन लेता है तो उसको रत्नागिरी जैसी बेस्ट जगह है नहीं, तो नागपुर में फिशरी कॉलेज करके क्या करेंगे ये लोग? Is it because that is the chief minister's deputy chief minister's constituency, sir? क्या वो डेप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या, इसलिए नागपुर में बना रहे हैं? नहीं, वो अभी उनके दिमाग में कोकन को कुछ देना है नहीं। पहली बात तो कोकन की जो हमारी जनता है वो आज तक सबको प्यार करती है, सबका सम्मान करती है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कोकन में जो पूर्व पर चला आ रहा है कि हम But this is very funny. Fisheries college in Nagpur, I don't understand. तकलीफ देता है। सर कोई लॉजिक तो होता है ना। अरे भाई 700 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है कोंकण की, सबको मालूम है। जो मेन फिशिंग एरिया इज कोंकण, तो फिशरीज कॉलेज भी वहीं होना चाहिए। अब फिशरीज रिसर्च एंड कॉलेज जो है वो आप नागपुर में बना रहे हैं, इसका लॉजिक क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सर कोकण में क्या ला रहे हैं? कोकण में ला रहे हैं अणु ऊर्जा का प्रकल्प, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि जैतापुर में एक प्रोजेक्ट चालू है जी। अभी नानर ला रहे हैं। नानर के बाद ये जो मतलब बोलते हैं ना कि ये नेचर ने दी हुई एक देन है, ये गॉड गिफ्ट है कोकण। इस कोकण को क्या लाना चाहिए? तो टूरिज्म लाना चाहिए था। इस कोकण में स्मॉल स्केल बिजनेस, जो कि हमारे पंतप्रधान जी सब जगह जाके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने सबको हाथ को काम दिया है। अरे यहाँ हाथ में जो काम थे वो चले गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा उत्पादन है काजू का, आंबा, जो कि हम हापूस मैंगो बोलते हैं। ये सब के ऊपर कुछ अभी तक प्रोजेक्ट बने नहीं है। प्रोजेक्ट बन क्या रहे हैं? तो अणु ऊर्जा प्रकल्प जिसकी जरूरत थी नहीं, नानर जैसे प्रकल्प जिसकी जरूरत थी नहीं, ये यहाँ पे रिफाइनरी करेंगे तो ये जो फिशरीज की जो मच्छी है ना, ये मच्छी भी नहीं रहेगी समंदर में। और दूसरी बात, इनको अगर जगह चाहिए तो बहुत सी जगह हमारे पालघर या जो भी मतलब जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ पे जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है, वहां पे ये कर सकते थे। लेकिन ये जानबूझ के प्रकल्प लाते हैं यहाँ पे, और उसके लिए जमीनें खरीदी जाती है। ये जमीनी इतने कम कीमत में खरीदी जाती है और बाद में इसकी कीमत 100 गुना हो जाती है। ये सब बाहर वालों को कैसे मालूम? ये आज तक मुझे सवाल का जवाब कोई यहाँ से मिला नहीं है। पाटरे साहब, आपने काजू के बात किया, आपने आंबा के बात किए, ये टूरिज्म के बात किए, ये अहम चीज है कोंकण के लिए, एब्सोल्यूट, बिकॉज इसके लिए कोंकण पूरे बेल्ट सिंधुदुर्ग से लेके एवरीथिंग इज फर्टाइल एरिया। राज साहब ने भी कहा टूरिज्म, ये अभी फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो काजू बोर्ड का स्थापना, शायद बोले कि ये स्थापना फडणवीस जी ने किया है, अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए। फिर उन्होंने आगे जाके वंदे भारत के माध्यम से लोगों को वहां पर फायदा होगा। एयरपोर्ट जो सिंधुदुर्ग में खोला है उससे लोगों को फायदा होगा। जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है पूरे कोंकण बेल्ट में, उन सब का रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इस चीज ये सब हो रहा है। तो क्या जो फडणवीस जी बोल रहे हैं गिना के ये सब मैंने किया, इसमें कुछ वजन है कि नहीं पाटरे साहब? सर, मैंने लास्ट डिबेट में भी बताया था कि आपको मालूम होगा कोकण के लिए एयरपोर्ट जो चिपिका और रत्नागिरी में एक छोटा एयरपोर्ट है, जो कि वहां पे कोई लैंड होता नहीं है एरोप्लेन लोगों के लिए। दूसरी बात, ये चिपिका जो एयरपोर्ट है, यहाँ की जो एयरलाइंस की जो विमान है जो आती है कम और कैंसिल ज्यादा होती है। लोग परेशान है कि टिकट निकाल के कल अगर कैंसिल हो जाता है तो करेंगे क्या। और तीसरी बात ये जो बता रहे हैं कि रेलवे की, तो सबसे बड़ी बात तो ये रेलवे का नाम है कोकण रेलवे, लेकिन हमारे कोकणी मानुस के लिए क्या है? तो बस गिन चुन के 4 रेलवे दिन भर में, जो कि टिकट उसकी मिलनी मुश्किल है। लोग साल भर उसके लिए राह देखते रहते हैं। कोई भी सीजन में जाओ, कोकण रेलवे हमेशा फुल। और बाकी सब रेलवे आती कहाँ से? कम 40-50 जो ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो आती कहाँ से? तो पूरे भारत से घूम के आ रही है, ज्यादा करके साउथ से आ रही है, आने दो। लेकिन कोकण के लिए उसका बेनिफिट क्या है फिर कोकण रेलवे का? अगर जमीन हमने दी है, हमारे लोगों ने
बिना कुछ कहे अच्छा हो रहा है तो अच्छे के लिए हाथ बढ़ाया। आज तक उनमें से कई लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, कई लोगों का मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। और फडणवीस साहब क्या बोल रहे हैं कि हमने किया, क्या किया वो बताइए। काजू बोर्ड का आप बोल रहे हैं, काजू को आज भी एक भी फिक्स भाव नहीं मिल रहा है। काजू के लिए कितने नए काजू गए, 4-5, आप 7 साल सत्ता में है, 2 साल बीच के छोड़ेंगे तो 7 साल में कितने नए काजू लगाए गए, कितने फार्मर्स को आपने अभी तक आगे स्कोप दिया है, या खाली आपके पार्टी के लोगों को कुछ फंडिंग जमा करके देते हैं? But Pradeep ji, this is very unfair and very disturbing because I still remember when the Konkan Railway was just coming in way back in 1993-94. बिल्कुल ये बात हो रही थी कि किस प्रकार पूरे कोंकण की काया पलट हो जाएगी, किस प्रकार वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगी, किसी को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कोंकण के जितने लोग हैं वो पहली बार देखेंगे कि विकास कैसे होता है। लेकिन अभी जैसे ये बता रहे हैं, पाठरे साहब बता रहे हैं कि यार जिन लोगों ने जमीन दी, बाकी सब दी, आज तक उनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिला जैसा मार्केट रेट पे मिलना चाहिए। और उसके अलावा कोंकण रेलवे से कोंकण के लोगों का क्या फायदा हुआ अभी तक ये किसी को मालूम नहीं है। तो पाटिल साहब इसका सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है इसका, आगे क्या? और एक लास्ट टाइम मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसमें सबसे बड़ी बात लास्ट टाइम जो बताई थी आपको कि हमारी जो बाजार पेट है, मतलब मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो सबसे पहले आती थी वडकल का सबसे बड़ा मार्केट। वडकल के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको इंदापुर, कोलाड, उसके बाद इंदापुर के बाद आपको आता था मानगांव, मानगांव के बाद आता था पहाड़, पहाड़ के बाद आता था पोलादपुर, पोलादपुर के बाद आता था खेड़, बरनानाका, उसके बाद आता था चिपलून, चिपलून के बाद था अपना सावर्डे, सावर्डे के बाद था संगमेश्वर, संगमेश्वर के बाद लांजा, लांजा के बाद राजापुर, राजापुर के बाद कनकौली, कनकौली के बाद कुड़ाल। ये जो बाजार पेट थी जहां पे लोग कई सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज वहां से भागे नहीं है। मेरा कहने का रोक समझिए आप, खाली मुझे इतना बताना है, ये सब बाजार पेट को, मतलब ये मार्केट एरियाज को इन्होंने फ्लाईओवर से खत्म कर दिया। वहां पे फ्लाईओवर दिया और वो फ्लाईओवर जहां पे उतर रहा है उसके बराबर आजू बाजू में के इलाके में, आगे के इलाके में, आगे या पीछे के साइड दोनों बाजू जहां पे उतरता है वहां पे बाहर से आके लोग जमीनें खरीदते हैं। हमारे लोगों को मालूम भी नहीं है फ्लाईओवर बनने वाला है, कहाँ उतरने वाला है, उसके पहले ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों को कैसे पता चलता है, गुजरात में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, कहाँ पे भी रहने वाले रहने दो, उनको कैसे पता कि ये एरिया में जमीन लेनी प्रॉफिटेबल है? वो कहाँ से आ जाते हैं? बीच में आपने सुना होगा कि नानार के टाइम 200 लोगों की जो लिस्ट आई थी उसमें सब कौन थे? एग्जैक्टली। और वहां के हमारे ये दलाल जो कि सत्ता में थे, शिवसेना, उनके लोग पकड़े भी गए थे उस मैटर में। जी दुरुस्त बात। तो अभी उस पे एमएनएस क्या प्लान कर रही है सर, ये तो बताएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी के नेतृत्व में अब क्या प्लान कर रहे हैं आपके, किस प्रकार आप कोंकण के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, वो जरा बताएं सर। सर आप देखे होंगे तो हमारे पूरे कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, इनको हमने ऑलरेडी सबको मालूम है, हमारी बैठक में भी लास्ट डिसाइड हुआ था कि कोंकण के लिए जो लोग निकलेंगे 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख तक उनको हेल्प जितना हो सके अपने तरफ से करना है। कहाँ पे चाय के लिए उनके लिए अगर सोई की होगी तो कहाँ पे मेडिकल के लिए, या अपने लोग खड़े हैं ट्रैफिक के लिए। दूसरी बात आप देख रहे होगे कि ये सब पोल खोल है, ये खाली मन से कर रही है। इन्होंने रोड बनाने के नाम पे कशेड़ी का जो बोगदा खोला है, वो टनल के अंदर आपने देखा होगा कि वो टनल पूरा अभी तक बना नहीं है जी। अभी हमारा कोंकण के ऊपर परशुराम भगवान का हाथ है ऐसा समझते हैं, गणपति बप्पा का हाथ है, बहुत से हमारे जो कि ग्राम देवता है उन लोगों का हाथ है, आशीर्वाद है। ये जो रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, कल एक आध बुरी घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कोंकण के साथ बहुत दूजा भाव कर रहे हैं, ये सरकार हो या इसकी पहली सरकार हो। यहाँ पर सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जहाँ तक परशुराम घाट का सवाल है और जहाँ तक परशुराम जी का सवाल है, कोंकण आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में है भगवान परशुराम जी की वजह से।
सीधी सादी बात है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं चाहूंगा आप उस पर रिएक्ट करें। आज अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई है कि महाराष्ट्र में ये टोल बढ़ा रहे हैं और पंजाब में हमने 12 टोल बंद कर दिए, टोल प्लाजा बंद कर दिए, और आगे जाकर के प्लान है कि कोई 10 या 12 को छोड़ करके बाकी सब टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे पंजाब में। पाठरे साहब। सर, मैं इस बात पे अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले शुक्रिया कहता हूं कि पंजाब हो महाराष्ट्र हो, ये देश एक है। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए। अगर हम गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स भर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स भर रहे हैं, तो हमें टोल की जरूरत कहाँ आती है? और ऊपर से कोई चलो अच्छे रोड बनते हैं जो कि बहुत मुश्किल रहता है, 250 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर अपना बचता है, तो ऐसे रोड वहां पे टोल लगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने कल परसों की न्यूज सुनी होगी कि मुंबई में जो टोल नाका है, वाशी का हो, मुलुंड का हो या फिर दहीसर का हो, ये तीनों टोल नाका का काम वहां की बीएमसी जो है, लोकल कॉर्पोरेशन कर रही है। अगर कुछ गड्ढे गिरते हैं, कुछ होता है, तो ये टोल किस बात का ले रहे थे? आज तक ये बात इन्होंने बताई नहीं है। ये क्या चीज की टोल ले रहे हैं? मुंबई में गाड़ी आने का टोल ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं या टोल ले रहे हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर ये टोल बंद कर सकते हैं, उनके हाथ में तो अभी पूरा देश की सत्ता तो है नहीं, फिर भी अगर उनमें हिम्मत है, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने की चाहत है, तो हम उनको शुक्रिया देंगे। और मैं हमारे गवर्नमेंट को, शिंदे सरकार को इतना बताऊंगा कि देखिए, जब आप सत्ता में थे उद्धव ठाकरे के साथ, तब आपको लगा था कि उद्धव ठाकरे घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे, आप बाहर घूम के कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लोगों को कहने की नौबत ना आए। उसके पहले आप अगर ये टोल बंद करना हो, लोगों का जो अभी स्टूडेंट रास्ते पे उतर रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी चीजों में जी, अगर आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है और आरक्षण के लिए अगर जॉब ही नहीं बचेगा, सब जगह प्राइवेटाइजेशन ही होगा, तो आरक्षण का फायदा क्या होगा आगे जाके? दुरुस्त बात। पाटरे साहब, आज के तारीख में क्या हुआ कि जो जलना में आंदोलन मराठा रिजर्वेशन हुआ था, एकनाथ शिंदे जी ने जाके फ्रूट जूस खिला के उस चीज को थमा दिया, वहां पर थोड़ा खत्म कर दिया। मगर नाना पाटोले जी ने आज एकनाथ शिंदे जी पे आरोप लगा दिया है कि मनोज जरंगा पाटिल को आप ही ने बिठाया था वहां पर। ये नाना पाटोले जी कांग्रेस के लीडर का कहना है, और उन्होंने आगे जाके कहा कि लाठीचार्ज कराने वाला देवेंद्र फडणवीस जी थे। तो ये आंदोलन जो अपने रिजर्वेशन के बाद ये महाराष्ट्र में एक उग्र आंदोलन सब जगह से चालू हो गया। आज नागपुर में से ओबीसी के टोटल बड़ा एक रिजर्वेशन और मोर्चा मुंबई की तरफ प्रस्थान कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग मंत्रालय के घेराव करेंगे। तो आज पूरे महाराष्ट्र पाटरे साहब, पूरे महाराष्ट्र रिजर्वेशन के आग में फंसा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हो आगे जाके? सर, मेरे ख्याल से लोगों का ध्यान बंटवाना ये सरकार का काम है। जो इनके ऊपर जो अभी आरोप चालू है, जैसे कि पहले तो शिंदे सरकार को खींचा उन्होंने, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस समय से 50 खोखा का जो अभी तक इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई अभी तक ठोस ऐसा कुछ भूमिका नहीं सरकार की तरफ से। ऊपर से जो सरकार के खिलाफ थे वो अजीत पवार जी, जो कि एनसीपी का एक गुट उन्होंने खींचा। तो इसके वजह से बीजेपी की जो प्रतिमा है वो पूरी मलिन हो चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि भाजपा ये सबसे करप्टेड पार्टी भाजपा है। मेरे ख्याल से आज ही मैंने एक कुछ जोक में कुछ आया था, उसमें जैसे हम बोलते हैं कि गंगा में मतलब अपने पाप धोने होंगे, तो पाप धोने के लिए हम लोग जाते हैं एक तो गंगा में, जो कि हमारी श्रद्धा स्थान है, और दूसरा अगर आपके पाप बहुत ज्यादा होंगे जो कि कहाँ पे धुल नहीं सकते, तो आपको बीजेपी में जाना पड़ेगा। ये दो जगह अभी इंडिया में है जहाँ पे पाप धो के आप साफ हो सकते हैं। तो ये आज की सिचुएशन है। और ये आरक्षण के मुद्दा पे ये महाराष्ट्र को कुछ अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश है। आपने अगर देखा होगा तो इसकी जो भी मतलब पहले तो जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री जी वहां पे गए, तब उपोषण छोड़ा। उपोषण छोड़ने के दूसरे दिन बाद नारायण राणे जो है एमपी लोकसभा के, उन्होंने कहा कि जो 96 कुली मराठा है उनको ये आरक्षण की जरूरत नहीं है।
उनको अलग आरक्षण चाहिए। उसके 2 दिन के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ओबीसी के जो मोर्चा है उसमें जाके बैठ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपका आरक्षण वैसा ही रहेगा, आपको कुछ तकलीफ होगी नहीं। फिर उसके बाद धनगर समाज के लिए उन्हीं के एक एक्स मिनिस्टर मंत्री है जो कि गोपीचंद पडलकर, वो उनके लिए फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में ये जाति पाति का राजकारण जो है उसको बढ़ावा देना, ये सब काम चालू है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किए, इन्होंने जो किया है वो छुपाने के लिए सब चालू है। अभी महाराष्ट्र के सामने, मैं हमेशा बता रहा हूं कि एक ऑप्शन महाराष्ट्र के सामने है, एक लास्ट पर्याय महाराष्ट्र के सामने है, वो है राज साहब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और रेलवे इंजन। एक बार लोगों ने ये सोच के बनसे को राज साहब को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन बाकी सबको लगता नहीं है सर, ये इसी विषय में पाटिल साहब हम न जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं, आपसे भी, बाकी सब लोगों से भी, कि जिस प्रकार आज की तारीख में मराठा एजिटेशन चल रहा है और उनको आरक्षण की कमिटमेंट दी गई है, उनको कहा गया है कि हम आपके लिए आरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो बार इस चीज को रिजेक्ट कर चुका है। महाराष्ट्र की खुद की जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है वो 4 बार रिजेक्ट कर चुकी है। वो कह चुकी है कि मराठा बैकवर्डनेस जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें नहीं बैठता है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे आश्वासन दे सकते हैं ये? सर इसमें आपको भी मालूम होगा शायद कि 50% का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। जो 33% मतलब 27% जो ओबीसी समाज को आरक्षण दिया गया है उसमें इतनी जाति आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, गिनना भी बहुत लंबी बात है। और उसके ऊपर अगर आपको आरक्षण देना है, हमारा भी कहना है अगर किसी को जरूरत है, आगे बढ़ना है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, और आरक्षण से उसको मदद मिल सकती है तो 100% उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये हाथ में किसके है? तो केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार को घटना में कुछ उसमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो कि 50% का कोटा है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो उनको अगर पॉसिबल है तो फिर यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 370 कलम रद्द कर सकते हैं, आपको जो चाहिए, बीच में आपको मालूम होगा कि पूरे फार्मर्स रास्ते पे उतरे थे, नई दिल्ली हो, हरियाणा हो, पूरा जाम करके रखा था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन लाने वाले थे उससे खेतीबाड़ी बेच के उनके गुलाम होना था। तो ये सब अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए किस चीज का राह देख रहे? शायद आगे जाकर के जाति और जाति के बीच में लड़ाई हो, शायद इस चीज की राह देख रही हो, क्योंकि आपने लड़ाई तो लगा ही दी है। ओबीसी का एजिटेशन शुरू हो गया है, स्टूडेंट्स का एजिटेशन चल रहा है, मराठा एजिटेशन चल रहा है। ये क्या चाह रहे हैं? और विच इज गोइंग टू बी रियली एंड ट्रूली सैड। बट सर इसी में एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगा कि आपने सर देखा होगा कि जब राज साहब ठाकरे जरांगे पाटिल जी को मिलने को जब गए थे जी, उन्होंने एक ओनली लीडर इन महाराष्ट्र की उन्होंने क्लियर बता दिया था कि अगर आपको आपकी जान सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, आपकी जान। दूसरी बात ये आपको बहुत गुमराह कर रहे हैं, आपका फायदा ले रहे हैं। आप इससे समझ लो आरक्षण देना इनके हाथ में है नहीं, ये आपका खाली यूज कर रहे हैं। उनके यहाँ पे जाके बता के सच्चाई सामने लाने वाले लीडर खाली राज साहब ठाकरे। ऊपर से उन्होंने वो भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर ये लोगों से ये जो झूठ बता रहे हैं इनको आप कोई भी इनके साथ अभी जाओ मत। ये उन्होंने उनके मीटिंग में उनके सभा स्थल पे जाके बताया था। अकेले राज ठाकरे हैं ऐसे नेता जिन्होंने सच बोला, सीधी सादी बात है, और किसी ने नहीं बोला। अकेले राज ठाकरे ने बोला भाई ये अभी पॉसिबल नहीं है, जब तक के संशोधन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर में, पार्लियामेंट में, उसके बगैर नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। थैंक यू सो मच पाटिल साहब, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मन से। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर। जय शिवाजी। But I hope everybody learns a lesson from this. Do we have any? Do we have any comments?
coming from. Any comments? I'm not sure if we have any or not. I did hear a yes from outside. I'm not sure. All right. All right. So can we take a look at the comments? But once again, for everybody, कल गणेश चतुर्थी है. सब लोगों के घर में आज गणपति आ चुके होंगे. कल उनकी स्थापना है. मैं उम्मीद करता हूँ कि गणपति के आगमन से जो मुंबई की कायाकल्प हो जाती है, पूरे महाराष्ट्र की कायाकल्प हो जाती है. मैं उम्मीद करता हूँ, प्रदीप जी भी उम्मीद करते हैं, हम दोनों उम्मीद करते हैं कि गणपति सबको प्रॉस्पेरिटी दे, हर खुशहाली हो हर जगह पे, हर एक को अकल दे. सबसे बड़ी बात यह है, अकल होनी चाहिए लोगों में. Wisdom, intellect. यस. और तीसरी चीज़ है, अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है, अगर मराठा आरक्षण में सरकार झूठ बोल रही है, जैसा कि मन से कहती है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा, जैसा कि उद्धव ठाकरे के लोगों ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच बोलेंगे और आकर कहेंगे कि भाई ये तरीका है, हम इस तरीके से आगे करने वाले हैं. क्योंकि प्रदीप जी, जातिवाद और जातियों के बीच में अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो महाराष्ट्र के लिए घातक होगा. That will be terrible. I hope that never happens. I really and truly hope that never happens. Right? Can we take a look at the comments, please? Let's see what's there. I can't see a thing. What is this? 1, 2, 3, 4. What's going on? What is this? He's talking about Vishal Builders. Oh, Vishal Builders. Now 90% work is complicated. Complicated or completed? Completed probably. All right. No, if it is, congratulations to you. Wonderful. Gee. If it is, wonderful, wonderful. Now 94 single organs complete. Single organs? Single? I don't understand. I don't understand what that means. चलिए आगे बढ़े. बजाज साहब और नाम्बियार साहब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया में ज़्यादातर मंडल कमर्शियल हिसाब से चल रहे हैं. जो किसी को बेनिफिट्स दे गए तो उसको भी बेनिफिट्स मिले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. ये बेनिफिट्स ने गलत और सही का फ़र्क ख़त्म कर दिया है. ऐसा कौन कह रहे हैं साहब? फिट वाले इद्रिस 5416 जी. Which mandals is he talking about? Is he talking about the Ganpati mandals or is he talking about Mandal Commission? I'm not sure. Samantha Ruth Prabhu to star opposite Salman Khan in Karan Johar's next film. Right? Can we take a look, please? Maza aayega. Abhilash Dwivedi ji wants to see Samantha Ruth Prabhu with Mr. Salman Khan. Don't we all? That'd be nice. I think, is that it or do we have any more? Hey, India alliance is of no consequence. Chopra Old Monk, Rajesh Kumar Vishwanathan. I think that's for me. That is definitely for me. Thank you very much. You know, I stopped drinking Old Monk long time ago. Tamanna Bhatia spotted in gorgeous looks. I mean, in a gorgeous look. How can one look be looks? Anyway, at the airport, and MD FORID and 9437 has sent 6 kisses to her. Isn't that lovely? What a lovely girl anyway. Tamanna Bhatia is an absolutely lovely person. Really, truly lovely. Is that it? Do we have any more? That's just about it. Right. So when I ask a question, my earphone seems to have come back. Prior to that, it wasn't there. Right. Thank you very much. That's just about it for this show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें. We love to read your comments. We love to know your response. This is your channel. नेशन नाउ आपका चैनल है. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं. बहुत शुभकामनाएं. गणपति बप्पा मोरया. That's it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.